I got you, Miss Amna, with me as a presenter, so you know better what to do next. Yes, sir. Thank you. Only 10 participants are with us. It's very early in the morning, and it means most of you guys do not pray in the morning. $264 की बैच है ना आपकी टोटल? जी सर ठीक शुक्रिया सर 268 है सर 268 268 यस सर और उसमें से सिर्फ 12 लोग यहाँ बैठे हुए हैं अभी, वो भी आई डोंट नो कि वो फिजिकली बैठे हैं या मेंटली भी बैठे हैं. Okay. So, may Allah bless you all with a very good morning on the very holy day, Friday. So, may Allah keep you all blessed. And very much congratulations to all of you. So, I think this will be our last online class with you, and hope it will be as according to the decisions of the government and our campus. So inshallah, from Monday we will be on the campus mode and we will have a direct interaction with you. Then we we may need much more very official dresses to be with there. Sometimes we are very feeling, particularly we people and you, feeling very relaxed at home. But no doubt this is not a compensatory mechanism to learn the things. So that will be more charming and more enjoyable when you will have a direct contact with your teachers and animals and the practical works, whatever it is. So inshallah, we will be together. We will be learning from each other from Monday on campus mode. So should I start? I already started your recording. I want to record everything from your side and from my side, what I'm starting. So let's start the review of our last class. Then I will put the importance of today's class, how much important it is. And I may have few words with you for our upcoming practical class, and I think that will also be a holiday. It might be 5th February and it is a Kashmir Day, I think. I have already given in your course file and I think it is Kashmir Day. Let me confirm. Oh my God. I don't know whether the university is going to celebrate that day, but I think most of the government institutes and the whole the country will celebrate that Kashmir Day as a whole in the country. So that will be 5th February. So you may not have the practical class on 5th February. So by the next week we will be starting our class. Today we may need some computer sounds, so I'm going to add computer sounds. Okay, who is going to give us the review of the last class, or if you have any query or question with fever, I'm here to discuss with you. Mr. Basir Ahmad, let me start from Amna. Mr. Basir Ahmad. Okay, Miss Okay, Amna. sir. जी Sir, in a previous class, we discussed about the very general common systematic states, which is found in many diseases. For example, the fever. There
have been two names dedicated for the fever, like pyrexia and fibrosis. And later we discussed about the etiology or the causes of the fever. There are mostly the two, and out of them, the most common is the septic, which is due to there are two causes of the septic. सर प्रीवियसली क्लास में तो हमने प्रैक्टिकल पढ़ा था ना. Okay, Miss Amna, you please Yes, sir. unmute yourself and All right, start sir. where Sir, you left. I should start from very start or from where I just stopped? Where you stopped. Okay. All right, sir. There were two names of the fever, like pyrexia and the fibrosis, and later we discussed about the etiology or the causes of the fever. There were two, septic and aseptic. Out of them, the most common is the septic, which is due to the localized or systematic. It means that something which is localized in a particular place in our body, like the abscesses and cellulitis and emphysema, which is the lung disease. Particularly, it is found in the alveoli of the lungs, and systematic, it means that bacteremia or viremia or septicemia, it means that something is found in the in any system, in entire system, like the bacteremia, blood bacteria in our bloods, viremia, viruses in our blood, or poisons in our blood. So this is septic, which is also the exogenous as well, because we are going to have them from the outer side of environment. And later we have another cause of the etiology, that is aseptic. Aseptic means that through the chemicals in aseptic, these may include some exogenous and endogenous. We might get these chemicals from the outside as well. On the other hand, our body can produce the chemicals which are of aseptic specifically. And later we discuss about the like exogenous. These are the external causes. These are due to the external causes, for example, virus, bacteria and bacteria endotoxins, and endotoxins by the toxins produced by our body. And the septic, which is due to the bacteria, and septics, which is due to the bacteria, viruses, protozoal and fungal. Bacteria produce the anthrax and so on, and viruses like the rabies, and protozoal like the anaplasma, and fungal like the aspergillus. If we talk about the endogenous, aspergillus, aspergillosis. Yeah. Right, sir? Okay. Okay. And then we discuss about the endogenous. These are due to the internal causes. For example, protein produced by the cytokines, which produce the interleukin, and then the proliferation of the T lymphocytes start. Then they are going to stimulate the anterior hypothalamus, which produce the prostaglandin E2, which increase the vasoconstriction and ultimately lead to the fever. On the other hand, there is also one type of another cause in the exogenous, that is a tumor necrosis factor. And in aseptic there is a surgical and chemical and a protein fever and neurogenic fevers. And later on we discuss about its pathogenesis, the manner of the development, how it is going to develop. So ultimately the development of the prostaglandin E2 is going to enhance the fever from the set point, which is set in our hypothalamus. So in some amount, in some limit. Okay, sir. Okay, thank you, Miss Amna. I would like to listen you a whole lecture within 10 minutes, but I have a very short of the time, and still few of your classmates wants to speak something. So I would like to ask you, have you been in any language classes from your interbase during your undergraduate courses? Miss Amna, I'm talking with you. No, sir. No, sir. Never ever? Never ever, sir. Oh, but your pronunciation and the way you are expressing your language, I think you have been taught some language courses from any institute or any private organizations. So, by the way, you are very good. Okay, thank you. Also, Miss Hormat, you were asking something before. Mr. Basir Ahmed, would you please? Yes, sir. Sorry, Hormat, please wait. You were late for responding. Okay, Mr. Basir Ahmed. जी सर वो मैं रिव्यू देना चाहता था क्लास का सर, वो आमना में मैंने दे दिया सर. Should I continue, sir, or not, sir? No. I think most of the things you have covered.
Okay, let Yes. me ask Ms. Hurmat have something new. Okay, sir. Thank you. Ms. Hurmat. जी सर, सर मैं स्टेजेस के बारे में बताऊंगी कि सर जो मैंने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ फीवर के सर जो स्टेजेस होते हैं वो मतलब ये होते हैं कि एक तो सिंपल फीवर होता है, फाइब्रोसिस सिंपली का होता है जो कि टेम्परेचर इज डज नॉट रीच टू द नॉर्मल एंड 44 आवर्स। वो क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल नहीं होता है एंड लेस देन 2 फ़ारेनहाइट, लाइक नमूनिया, लेबर नमूनिया एंड एंटेरिक फीवर्स एंड रेटिमेटिक फीवर्स जो होता है फाइब्रोसिस रेटिमिक एज अ सिंपल फीवर वेरिएशन टेम्परेचर इज अ मोर देन 2 फ़ारेनहाइट एंड इसमें सर एग्जांपल आ जाती है ब्रोंकल ये नमूनिया and septicemia, urinary tract infections, and other types of the and intermittent fever says a fibers. There are regular attacks of the fever. Attacks may last few for सर वो क्या कहते हैं मतलब कुछ फ्यू आवर्स होते हैं उसमें भी ये अटैक हो जाता है और देन द फाइब्रोसिस इज अ पीरियड अगेन राइज इन द बॉडी टेम्परेचर और फिर वो क्या हो जाता है मतलब एक तो कम हो जाता है देन आफ्टर फ्यू आवर्स के बाद फिर वो अगेन टेम्परेचर राइज हो जाता है। तो सर इसमें है ना नमूनिया आ जाता है और क्रोनिक फ्लोर आ जाता है एंड कंटिन्यूस फीवर होता है जो कि बॉडी टेम्परेचर इज रिमाइंड एंड एलिवेटेड फॉर द लॉन्गर पीरियड। सर ये भी मतलब क्या हो जाता है कि लॉन्गर पीरियड के लिए फीवर होता है वो क्या होता है कंटिन्यू चलता रहता है लेकिन खत्म नहीं होता है, टिक बॉर्न फीवर्स होता है। एंड सर इसका ट्रीटमेंट देखी जाए तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होती है एंड इसमें सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है जो कि एंथेरोपाइमेटिक या स्टेरॉइड्स दी जाती है और एक होता है सुपरेटिव होती है, मल्टीविटामिन्स दी जाती है, मिनरल दी जाती हैं एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द कॉम्प्लिकेशन डिहाइड्रेशन एनेक्सिया एंड पोलिटेनिमिया। ये एंटीपायरेटिक कहते हैं, एंथ्रोपाइटिक नहीं कहते। एंटीपायरेटिक मींस पायरेसिस मींस फीवर, पायरेसिस। सो एंटीपायरेटिक मींस अगेंस्ट फीवर। फीवर को कंट्रोल करने के लिए जो ड्रग्स दी जाती हैं, डाइक्लोफेनिक सोडियम है, पेनाडोल है या पोनिस्टान, ये ह्यूमन साइड पे होती हैं। फ्लूमेग है, एनिमल पे ग्रुप से यूज होते हैं। एक डाइक्लोफेनिक सोडियम, मेलॉक्सिकम। डाइक्लोफेनिक सोडियम तो अभी बैंड हो गई है वर्ल्ड वाइड। एक है मेलॉक्सिकेम, इसका फार्मूला दूसरा है फ्लूमेग। ये एनिमल्स में मोस्टली यूज होती हैं एज एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक। तो ये होती हैं। वेरी गुड, थैंक यू मिस हुर्मत, वेरी स्टनिंग। some of the voice I have heard before that this is a practical class, so we should have a review of the previous practical. So does anybody said yes. that before? सर ये मैं स्टार्ट में ही कह रही थी लेकिन आपने ऑल म्यूट कर दिया। आपने ही कहा था? अच्छा जी सर। और मैंने ऑल म्यूट किया कि डिस्टरबेंस ना हो इसलिए। लेकिन इफ यू वांट टू रिव्यू आवर प्रीवियस प्रैक्टिकल क्लास, इट विल बी मोर ग्लैड टू मी। Do you remember what were our previous practical class? Ms. Hormat, are you with us? यस सर। सर प्रैक्टिकल क्लास में हम लोगों ने सर वो एनिमल हिस्ट्री टेकिंग हम लोगों ने पढ़ा था सर। Yeah. हम एनिमल की हिस्ट्री जी सर हम लोगों ने यही पढ़ा था सर। Okay. एक्चुअली अगली फरवरी की आपकी जो जुम्मे की क्लास है प्रैक्टिकली हो सकता है, आई हैव स्ट्रांग thought that it will not be conducted due to the Kashmir Day. It will be celebrated whole of the country, in the whole of the country. So after that, in the practical class, I would like to make a team who works with me. ऑनलाइन क्लासेस में तो मैं एक बंदे को उठा के अपने साथ एज अ प्रेजेंटर रखता हूँ सपोर्ट में। लेकिन अभी जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें बसीर हो गया, हुर्मत, मिस आमना, रुताबा, मुकीम, ये 5-6 लोग, या इससे भी आगे जाके फिर आइडेंटिफाई करेंगे 2-3 थ्योरी क्लासेस में कि कौन एक्टिव है। उसको प्रैक्टिकल क्लासेस में मैं अपना सपोर्टिंग हैंड्स लेना चाहूँगा, क्योंकि क्लास बहुत बड़ी होती है। जब रियल लर्निंग करनी पड़ती है, एवरीबॉडी शुड हैव अ चांस टू प्रैक्टिस बाय देयर ओन हैंड्स। तो उस टाइम पे हमें बड़ी दुश्वारी होती है कि मैं सिर्फ एक ग्रुप को सिखा रहा हूँ, बाकी ग्रुप मेरा इंतज़ार करते रहते हैं। तो
this time I have a strategic plan for you guys कि मैं एक ग्रुप वो होगा जो एलिट क्लास के लड़के हैं जो ज़्यादा एक्टिव हैं, पार्टिसिपेट भी करते हैं, चीज़ों को सीखने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो उनको मैं पहले सिखाऊंगा, उनका एक ग्रुप बना के अलग से, फिर उनको डिसमिनेट कर दूंगा हर ग्रुप में कि आप फलां ग्रुप को सिखाएं, आप फलां ग्रुप को सिखाएं। इस तरह से मेरे काम में मुझे आसानी होगी और आपके लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। अदरवाइज क्लास की टाइम ख़त्म हो जाती है, मैं ग्रुपों में कभी इधर कभी उधर दौड़ता रहता हूँ, लेकिन लड़के सीख नहीं पाते हैं। So this time I have a different strategic plan and inshallah it will work. So today आज का जो लेक्चर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हो सकता है कि आज मैं इसको ख़त्म न कर पाऊँ आज की क्लास में। हाँ, तकरीबन 30 स्लाइड्स तो मैंने प्रिपेयर कर ली हैं, लेकिन इसकी टोटल स्लाइड्स 70 से भी अब हो जा रही हैं पीपीटी की। लेकिन ये क्लास, प्रैक्टिकल क्लास इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? इस हिसाब से ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर ये क्लास आपको सही से समझ आ गई तो समझें कि 50% डायग्नोसिस आप सीख गए। किसी भी जानवर का डायग्नोसिस करना, डिजीज़ डायग्नोस करना 50% आप सीख चुके होंगे। तो उसके बाद की बाकी चीज़ें हैं जो इस क्लास में नहीं होंगी, जो आप आगे जाके दूसरे क्लासों में सीखेंगे या अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और नॉलेज के बुनियाद पे सीखेंगे। लेकिन ये क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर द फिज़िकल एग्जामिनेशन और क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ द एनिमल। और इसमें जो है 3 थे एस्पेक्ट्स के एनिमल एग्जामिनेशन के लिए या एनिमल के डिजीज़ डायग्नोसिस के लिए। एक तो आप एनिमल को चेक करते हैं, दूसरा हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, तीसरा करते हैं एनवायरनमेंट। तो हिस्ट्री टेकिंग और एनवायरनमेंट हमने कवर कर लिया है पहले से ही, और आज जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है फिज़िकल एग्जामिनेशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर डिजीज़ डायग्नोसिस और बहुत ही इम्पोर्टेंट है कभी आपको कहीं दूसरे सूबों में ट्रेनिंग करने जाना पड़ जाए तो ये सारी चीज़ें आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। या कोई भी आपके सामने एनिमल खड़ा करके कोई आपको कहे कि इसका एग्जामिनेशन करो तो आपको कोई हेजिटेशन ना हो, और आपके एग्जामिनेशन के प्रोसीजर से लगे कि यस यू आर अ वेटनेरियन। कोई देखता हो कि आप एनिमल को किस तरह से एग्जामाइन कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसकी फिजिकल अपीयरेंस को, उसके साइन एंड सिम्टम्स को, तो आपके उस एग्जामिनेशन से ही लगे कि यस यू आर द perfect veterinarian for the practice of the animal sciences or animal disease diagnosis। तो कुछ लोग होते हैं कि ट्रीटमेंट उनकी अच्छी हो जाती है लेकिन उनको एग्जामिनेशन करना नहीं आता। हम कहते हैं कि प्रोफेशनल अप्रोच हो, फिर ट्रीटमेंट फ़ायदा देती है नहीं देती है वो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन आपकी अप्रोच जो है टुवर्ड्स द ओनर, टुवर्ड्स द एनिमल, वो प्रोफेशनल लुक दो, उसका प्रोफेशनल लुक हो। फॉर एग्जांपल आप ही खुद को देख लें, अपने अंदर झांक लें। कभी आपको ह्यूमन डॉक्टर के साथ बहुत दफ़ा इंटरेक्शन हुआ होगा कि अगर डॉक्टर ना आपकी बात सुने, ना ही स्टेथोस्कोप कानों में लगा के आपके साउंड्स, इंटरनल साउंड सुनने की करे, ना टेम्परेचर चेक करवाए, ना ही आपका ब्लड प्रेशर चेक करे, और आपको देखे हाँ जी क्या है, बुखार हुआ, चलें ये दवाई ले लें, कल आ जाना, तो क्या आप वो दवाई लेंगे? कभी भी नहीं लेंगे। यानी इसने तो चेक ही नहीं किया, इसने तो मुझसे हिस्ट्री भी नहीं ली, इसने मेरा फिजिकल एग्जामिनेशन भी नहीं किया। चले हिस्ट्री भी ले लेता है पूरी आपसे कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, लेकिन उसने फिजिकली आपको टच भी नहीं किया, आपकी कोई एग्जामिनेशन नहीं की, आप उसकी भी दवाई नहीं लेंगे। तो इसको क्या पता, इसने तो कोई स्टेथोस्कोप नहीं रखा, टेम्परेचर नहीं चेक किया, ब्लड प्रेशर चेक नहीं किया। तो कंप्लीट प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए अगर बंदा कोई आगे जाता है तो उसको बहुत सारे क्लूज मिलते हैं फॉर डिजीज़ डायग्नोसिस के लिए, और उसका इम्प्रेशन भी पड़ता है ओनर पे, और उसकी प्रोफेशनल अप्रोच को देख के उसकी जो है वो फिर कस्टमर्स की तादाद भी बढ़ती चली जाती है। I'm sorry, I'm feeling some cough since last day. I already have shared many videos on your group for today's learning. If I may not be able to show you all videos,
You are advised to see the all videos on YouTube. Otherwise, I have downloaded all videos with me. In the end, I would like to show you these videos in the end of this lecture. And this PPT is already on your screen and I have uploaded in the morning. Clinical examination of the animal. Clinical examination of the animal में history taking और the environment हमने पहले से cover up कर लिया है. Today we are going to discuss how to examine the animal. और इन तीनों में से किसी भी की भी पुअर अगर आपने इन्वेस्टिगेशन की तो उसमें फिर आपकी डायग्नोसिस में एरर आने के बहुत सारे चांसेस होंगे. अगर हर्ड की हम फिजिकल एग्जामिनेशन करें तो ग्रुप इंडिविजुअल एनिमल और हर्ड में थोड़ा डिफरेंट है. हर्ड के हिसाब से बंदा थोड़ा वाइडर सोचता है. गोल्स हमारे क्या होने चाहिए कि हमने सबसे पहले अगर हर्ड एग्जामिनेशन करनी है और हर्ड को ट्रीट करना है, कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, you have been called for the veterinary help, then you have to keep all these things in your mind before starting your work. Identify sick cows early. अगर ये बहुत बड़ा हर्ड है, 1000-3000 तक भी फ्लॉक्स होते हैं या एनिमल्स शेड्स होते हैं, उसमें एनिमल्स का होता है, तो उसमें आपने इमीडिएटली जो सिक एनिमल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको अलग किसी पार्लर में किसी शेड में रखवाना है. ट्रीट द सिक काउज अर्ली. जो सिक हैं सबसे पहले उनकी ट्रीटमेंट शुरू कर दें. बाकियों को वैक्सीनेशन या कोई उनके मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में चेंज लाना चाहते हैं तो वो सजेशंस दे दें कि सैनिटरी प्रॉब्लम्स हैं तो उनको इम्प्रूव करें. देन प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिजीज़. ये सिक एनिमल्स को अलग करके ट्रीट करने का मकसद ये है कि हमने डिजीज़ के स्प्रेड को रोकने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये अगर वायरल है तो, और वायरल में भी बहुत सारी स्ट्रेन्स हैं जो कि बहुत ही तेज़ी से फैलती हैं, पर्टिकुलरली वो वायरल जीन्स या वो वायरल प्रोटीन्स एंटीजेंस जो कि एरोसोल ट्रांसमिशन से होती हैं, जैसे फुट एंड माउथ डिजीज़. उसको रोकना इतना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी आइसोलेशन एनिमल को अलग रखने से काफ़ी हद तक उसमें कमी वाक़ई हो जाती है. प्रोटेक्ट द फूड सप्लाई. जो फूड सप्लाई आ रही है उसको प्रोटेक्ट करें, उसको भी अलग रखें. एक जानवर का घास दूसरे को ना दें यूज़ किया हुआ, और दूसरा के जो फूड सप्लाई जानवर से ह्यूमन बीइंग को जा रही है मीट और मिल्क की सूरत में, उसको भी प्रोटेक्ट करना है. जितना जानवर हेल्दी रहेगा तो हमारी फूड सप्लाई प्रोटेक्शन होगी. इम्प्रूव एनिमल वेलफेयर. ग्रुप ऑफ द एनिमल्स में रिसेंटली काव्ड और फ्रेश काउज जो होती हैं, जो रिसेंटली उन्होंने पार्चुरेशन की है, एनिमल किसी बेबी को बर्थ दी है, उनका ज़्यादा ध्यान रखा जाता है. उनको अलग से पार्लर पहले लेबर रूम में रखते हैं, फिर पार्लर में, फिर मिल्किंग एनिमल्स के साथ रखते हैं. तो उनकी बड़ी केयर की जाती है बिकॉज दे आर एट द स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन, दो इट इज़ द मिल्क प्रोडक्शन और मीट प्रोडक्शन. तो उनमें जब उसकी प्रोडक्शन स्टेज पीक पे होती है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं. तब बंदा उसकी यूरिन एनालिसिस, ब्लड एनालिसिस और डेली बेस पे उसकी मिल्क सर्फ टेस्ट करता रहता है कि कोई हिडन कोई मसला तो नहीं है जो कि आगे जाके क्लिनिकल हो जाए और फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए. तो प्रिवेंटिव मेजर्स ज़्यादा केयर करने की उनको ज़रूरत होती है. जो रिसेंटली पार्चुरेंट काउज होती हैं, जो किसी बेबी को बर्थ दे चुकी होती हैं. नॉन स्ट्रेस्ड एनिमल्स. एनिमल्स को कोशिश करें कम से कम स्ट्रेस दें. रिसेंटली परचेज्ड एनिमल्स को अलग रखा जाता है तकरीबन 2 से 3 हफ्ते तक अलग रखा जाता है, जो कि इन्फेक्शियस और जो डेंजरस डिजीज़ हैं उनके इंक्यूबेशन पीरियड्स अराउंड यही होते हैं 14 दिन तक. तो उनको अलग रख के चेक करते रहते हैं मुसलसल कि कोई ऐसी इन्फेक्शियस या स्प्रेडेबल डिजीज़ तो नहीं है उनको. अगर है तो वो वहीं से ही अलग करके या ओमिट आउट कर दिए जाएं, निकाल दिए जाएं या उनको ट्रीट किया जाए. हाँ, स्ट्रेस्ड एनिमल्स कौन से होते हैं? वीनिंग का एक जानवरों पे स्ट्रेस होता है. जो छोटे काफ्स जैसे ही अपने मदर से अलग किए जाते हैं उनको थोड़ा बहुत स्ट्रेस होता है, उनकी केयर करनी पड़ती है जब तक वो स्ट्रेस से निकल आए. फिर उनकी मैनुअल फीडिंग, मिल्क फीडिंग करनी पड़ती है.
कुछ इन्वायरमेंटल स्ट्रेस हैं, हीट शॉक है, हीट स्ट्रोक है, कोल्ड शॉक्स हैं, उनसे बचाना है, मैनेजमेंट बढ़ानी है। ये हर्ड की मैं बता रहा हूँ, एग्जामिनेशन करके सजेशंस देनी है आपने। मैनेजमेंट में आप कोई चेंज लाना चाह रहे हैं तो वो बतानी है। अगर एनिमल ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रेस में है तो उसको फिर अलग से रखें, उसको जब तक वो ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रेस से निकल जाए फिर उसको लाएं हर्ड में। सो दीज आर दी सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड ideas for dealing with group animals. जब हम एनिमल की एग्जामिनेशन करेंगे तो हम थोड़ी अपनी सिस्टमेटिक अप्रोच रखेंगे। पहले एनिमल का हम दूर से एटीट्यूड चेक करते हैं, अलर्ट है, डल है, एक्टिव है या डोसाइल है या हाइपर है या एग्रेसिव है, ये सारे उसके बिहेवियरल साइंस हैं। एक जानवर जो होता है एग्रेसिव होता है तो वो बहुत झगड़ालू, चिड़ाक, गुस्से वाला होता है एग्रेसिव, और डोसाइल बहुत ही कोऑपरेटिव, बहुत ही नरम मिजाज रखने वाला, उसे कहते हैं डोसाइल एनिमल। एग्रेसिव जो इंग्लिश की टर्मिनोलॉजीज हैं, आई थिंक यू मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेल फेमिलियर विद दीज टर्मिनोलॉजीज। तो एटीट्यूड में ये सारी चीज आ जाती हैं। अलर्ट है या डल है, ये सारी चीजें आपने दूर से चेक करनी है। जैसे आप कहीं पे जा रहे हैं, किसी शेड में, किसी फार्म पे एंटर हो रहे हैं, तो आपने दूर से ये चीजें चेक करनी है कि एनिमल कितना एक्टिव है, डल है, अलर्ट है, एग्रेसिव है, डोसाइल है, क्या है। एग्रेसिव और डोसाइलनेस ये फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है, लेकिन अलर्ट और डल होने में ये अलग चीजें हैं। अच्छा, आईज एंड ईयर्स उसको देखना है फिजिकल एग्जामिनेशंस में। एपिटाइट, जानवर की एपिटाइट किस तरह है, उसका मेंजर चेक करें, उसने खाना खाया कि नहीं खाया। एक तो एपिटाइट अगर उसका मेंजर जो उसके सामने है वो अगर वो है खाली है तो ठीक है, इट मीन्स कि इसने पूरा खाना अपना खत्म कर दिया। अगर वो भरा हुआ है तो ये बात है कि इसने खाना नहीं खाया। दूसरी एपिटाइट किस तरह चेक होती है कि अगर जानवर रिगर्जिटेशन कर रहा है, जुगाली कर रहा है, इट मीन्स ये इसका हेल्दी साइन है। एनिमल हैव नो एनी प्रॉब्लम फ्रॉम डाइजेस्टिव पॉइंट ऑफ व्यू और एनी इन्फेक्शियस पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसका एक हेल्दी साइन ये भी है। तो एपिटाइट आप इस तरह से चेक करें। हाइड्रेशन चेक करें, जानवर डिहाइड्रेटेड तो नहीं है, उसकी चेकिंग के लिए हमारे पास टेस्टें हैं जो हम फिजिकल एग्जामिनेशन में करेंगे। टेम्परेचर चेक करते हैं, फीट और उसकी लेग, लोकोमोशन चला के देखें कि उसकी लेग सही है, फीट सही है। अडर की एग्जामिनेशन करें। फिर अगर यूट्रस की एग्जामिनेशन ज़रूरी है, कोई कंप्लेन है, तो आप हैंड ग्लव्स लगाएं। और पर रेक्टम हम यूट्रस की एग्जामिनेशन करते हैं। ये आपको सिखाएंगे आगे जाके एनिमल रिप्रोडक्शन वाले। और अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो हमारे पास इतने जानवर नहीं है कि हम 268 लोगों को कहें कि आप ग्लव्स लगा के उसके रेक्टम में हाथ डालें और फिर उसके पेल्विक ऑर्गन्स को पेल्पेट करें। तो इतने क्वांटिटी तादाद में नहीं है, लेकिन हम आपको दिखा सकते हैं, या कुछ जो 5-8 लड़कों को करवा सकते हैं मेडिसिन में, लेकिन इसके लिए भी एक पूरी क्लास चाहिए। हार्ट रेट चेक करना है लेफ्ट साइड से जाके स्टेथोस्कोप के साथ। लंग्स साउंड्स चेक करने के, साउंड लंग्स के नॉर्मल हैं कि एबनॉर्मल है। र्यूमन चेक करना है बाहर से फिजिकली कि र्यूमन मोर्टालिटी ठीक है कि नहीं है। और जो जानवर फीसिस पास आउट कर रहा है उसे मैन्योर कहेंगे, उसको चेक करना है। अगर वो प्रेजेंट है तो वो वाटरी है, डेंस है, किस तरह है, उसमें एग्स हैं या उसमें वर्म्स हैं या और कुछ का कलर क्या है और उसकी स्ट्रक्चर किस तरह है। ये सारी चीज़ें आपने जानवर की चेक करनी है। स्टेप of the physical examination, after you have taken the patient history, you should begin to examine the animal's head and neck. काफ़ी लोग कहते हैं कि एग्जामिनेशन रियर से शुरू करनी चाहिए, पीछे से शुरू करनी चाहिए। कुछ लोगों का ख्याल है कि आगे से शुरू करनी चाहिए, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड सूटेबल लगता है। यहाँ पे इन्होंने हेड और नेक से शुरू करी है। यू शुड असेस द फॉलोइंग। ईयर देखें कि इरेक्ट हैं, ड्रूपिंग हैं, हॉट हैं या कोल्ड हैं। समटाइम्स अगर हमारे पास थर्मामीटर नहीं होता या टूट जाता है तो हम कान के बेस को पकड़ के वो फील करते हैं कि ये एनिमल के कान ईयर्स जो हैं कोल्ड हैं या वार्म हैं। वहाँ से भी उसका कोर बॉडी टेम्परेचर एस्टिमेट किया जा सकता है। ये आप जब बार बार करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि शीप एंड गोट और बफलो एंड काऊ में
इसकी वार्मथ की कितनी डिग्री है जो नॉर्मल को शो करती है और कितनी डिग्री है जो उसके हॉटनेस और कोल्डनेस को फीवर को शो करती है। आइज देखें, आइज में दो किस्म के हैं, एक दूसरा सुनकिन आइज, जैसे ना आइज में गड्ढे पड़ जाते हैं, आइज अंदर घुस जाती हैं, इस तरह से उनको सुनकिन आइज कहते हैं। और ये डिहाइड्रेशन की निशानी है कि एनिमल इज गोइंग टू बी डिहाइड्रेटेड। या इमोशनल स्टेटस है एनिमल्स की आइज से पता लग सकता है। नोज डज शी हैव एनी म्यूकस डिस्चार्ज, देखें कि नोज से कोई म्यूकस डिस्चार्ज हो रही है, अगर हो रही है तो वो किस टाइप की है, प्यूरुलेंट है, ट्रांसपेरेंट है, वाटरी है, ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी है। माउथ, अगर उसकी टीथ जो हैं वो ग्राइंडिंग हर टीथ, वो ग्राइंडिंग कर रही है तो समझें कि ये वो उसकी हो रही है जुगाली कर रही है, तो वो नॉर्मल उसका फिजियोलॉजिकल बिहेवियर है। लेकिन अगर कोई टीथ बढ़ा हुआ है, वो कोई अंदर खाने के दौरान जख्म कर रहा है या उसमें कुछ आवाज़ें आ रही हैं, तो उसको फिर आप सर्जिकली ट्रीट करेंगे। जा को चेक करें, मैंडिबुलर एरिया है लोअर जा मोस्टली, उसमें काफ़ी साइंस होते हैं, तो लिम्फ नोड्स भी आप पैल्पेट करते हैं वहाँ पे जा, लोअर जा से। और वहाँ पे एडिमेटस स्वेलिंग भी होती है जॉ के नीचे, बॉटल जॉ भी कहते हैं उससे, जो इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी की वजह से या इलेक्ट्रोलाइट की तादाद बढ़ने की वजह से भी। और उसके अलावा कुछ वर्म इन्फेस्टेशंस हैं, कुछ राउंड वर्म्स हैं जो कि ये बॉटल जॉ या एडिमेटस स्वेलिंग लोअर जा की करते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस का भी काज बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ आपको इंडिकेट कर रही होती हैं। वो आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज बेस्ड एग्जामिनेशन होगी तो आपको कोई अच्छे क्लूज देगी कि ये फला डिजीज़ को शो कर रही है। नेक को चेक करें, डज शी हैव एनी स्वेलन लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स देखें नेक पे कोई स्वेलन तो नहीं है, अगर स्वेलन है तो ये कोई इन्फेक्शन जानवर में है जिसके अगेंस्ट वो फाइट कर रहा है। स्किन की डिहाइड्रेशन चेक करते हैं जो कि हम उसे कहते हैं पिंच टेस्ट, PINCH, पिंच टेस्ट। वो आगे जाके आपको मैं दिखाता हूँ और उसकी वीडियोस भी मैंने रखी हैं आपके ग्रुप पे कि पिंच टेस्ट किस तरह करते हैं। Ears are a quick indicator of cow's physical well-being. If her ears are cold, there is a problem. If her ears are warm, there might still be a problem. Eyes are a quick indicator of both hydration and of her emotional status. As her eyes normal, are they sunken? sunken होंगी तो डिहाइड्रेटेड होंगी, नॉर्मल होंगी तो कोई नहीं मसला नहीं। डू हर आइज इंडिकेट इफ एन एनिमल इज स्केयर्ड और इन पेन, और एनिमल अगर पेन में होता है तो उसकी आइज के फिजिकल अपीयरेंस डिफरेंट हो जाती है, या इमोशनल या किसी खौफ में मुब्तला होता है तो भी उसकी आइज डिफरेंट लुक दे रही होती हैं। Nose, when examining the nose, look for mucus. Runny nose, is it a clear? अगर नोज पे कोई डिस्चार्ज वगैरह नहीं है तो गुड, और सॉलिड कलर है तो भी ठीक है। अगर सॉलिड कलर है तो टिपिकली बैड है। मोस्टली जो इसकी नोज की जो नॉस्ट्रल्स के बीच में जो एरिया होती है, ये तस्वीर में भी है, ये दोनों नॉस्ट्रल्स हैं एनिमल्स के, इसके बीच की ये जो एरिया है इसे नोज भी कहते हैं, और एनिमल्स में हम इसे मजल भी कहते हैं। तो इस पे हल्का सा पानी के बुखारात वहाँ पे रहते हैं, ड्रॉप्स हर वक्त रहते हैं, जो कि उसके एनिमल की हेल्दी साइन है। अगर इस पे मजल पे पानी के ड्रॉप्स आपको नजर आए तो समझ है उसे कोई हाइपरथर्मिया, पायरेक्सिया, फीवर वगैरह नहीं है। लेकिन अगर उसको 2 से 3 या 3 से 4 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर राइज होगा तो यहाँ पे मजल इसकी एनिमल की ड्राई होगी, ठीक है, वो खुश्क होगी बिल्कुल, वो टेम्परेचर साइन शो करती है। आफ्टर चेकिंग द नोज, लिसन नियर हर माउथ, उसके माउथ के करीब जाके उसकी आवाज़ें सुनने की कोशिश करें। इज शी चूविंग हर कड, वो क्या रिगर्जिटेशन कर रही है, तो वेरी गुड। डू यू हियर अ हाई पिच्ड ग्राइंडिंग नॉइज, वो बेड है। इफ सो दिस इज अ साइन दैट काउ इज इन पेन। इज शी कंपल्सिवली लिकिंग और चूविंग, आर there any other signs of emotional or nervous
problem with nose and teeth. एक टर्मिनोलॉजी है जिसकी वीडियो भी हमने डाउनलोड की है और शेयर भी की है आपके साथ, कैपिलरी रिफिल टाइम। ये एनिमल्स का जो हॉर्सेस हों या काउस हों जो भी हों, उसके ऊपर वाला जो लिप है या उसको मजल कर दें, वो ऊपर करके फिर जो गम्स हैं टीथ्स के साथ, जो ऊपर गम्स हैं उसको प्रेस करते हैं थंब के साथ, छोड़ देते हैं तो वहाँ पे जो कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज, वो पहले प्रेस करने से वाइट हो जाती हैं और छोड़ने से इमीडिएटली पिंकिश कलर की हो जाती हैं। तो ये कैपिलरी रिफिल टाइम है। ये अगर 1 to 2 सेकेंड्स में वो पिंकिश वापस अपना कलर रिस्टोर कर लें, रिकॉल कर लें पिंकिश, तो वो समझें कि ये कैपिलरी रिफिल टाइम इसका नॉर्मल है, इसके ब्लड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाइपोवॉल्यूमिक भी नहीं है, हेमोग्लोबिन की कमी भी नहीं है। लेकिन अगर वो रिफिल टाइम अपने टाइम पे वापस ना आए तो उसके काफ़ी सारे इंडिकेशंस हैं। अगर 1 to 2 सेकंड्स में ना आए, अगर ये लोअर टाइम इंडिकेट्स करे, मीन्स 1 से 5 सेकंड्स तक वापस ना आए, तो ये शॉक या डिहाइड्रेशन को इंडिकेट करता है। अगर 1 सेकंड से कम में वापस आ जाए, बहुत क्विकली वापस आ जाए, तो ये भी इंडिकेट करता है हीट स्ट्रोक को और शॉक को। आप इस स्लाइड को थोड़ा रीड करें एंड गिव मी जस्ट 2 minutes, आई विल बी बैक। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस टू यू। ये लोअर जॉ अगर आप अपर पिक्चर में देखेंगे तो इसकी एडिमेटस स्वेलिंग हुई पड़ी है, इसको बॉटल जॉ भी कहते हैं। तो जॉ और नेक के एग्जामिनेशन में क्या करना है, चेक हर जॉ, इज देयर एनी स्वेलिंग और फ्लूइड बिल्डअप। अगर यहाँ पे कोई पानी जमा हो गया है लोअर जॉ में तो उसे एडिमेटस स्वेलिंग भी कहते हैं, और मोस्टली हम उसे बॉटल जॉ का नाम भी देते हैं कि उसमें पानी भर गया या स्वेलिंग हो गई है। चेक ये वर्म इन्फेस्टेशन की वजह से भी होता है, एक डिजीज बैक्टीरियल डिजीज में भी होता है, और दूसरा जब ये ट्रॉमेटिक पेरिकार्डाइटिस होता है एनिमल में, जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं शायद, अगर नहीं तो आप सवाल पूछ सकते हैं, तो उसमें भी ये जॉ का जो लोअर पोर्शन में इसमें पानी भर जाता है और ये स्वेलिन हो जाता है। मोस्टली लो इलेक्ट्रोलाइट्स, ये राउंड वर्म्स या सेस्टोट्स, ये जब इसकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है इंटेस्टाइन और स्टमक में, तो भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होता है, उसकी वजह से भी यहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन होती है। एनिमल नॉर्मल होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है एनिमल का, कोई उसको फीवर वगैरह नहीं होता, खाना पीना भी चल रहा होता है, लेकिन यहाँ पे अगर पानी भरा हुआ है और स्वेलिन है तो ये श्योर शॉट है कि वर्म इन्फेस्टेशन है।
और ये आप सब ये भी जहन में रखें कि अगर एनिमल नॉर्मल फीडिंग कर रहा है, रिगर्जिटेशन कर रहा है, उसका मसला कंप्लेन सिर्फ ये है कि खाना कम खा रहा है, और दूसरी कंप्लेन ये है कि उसने प्रोडक्शन कम कर दी है, मिल्क प्रोडक्शन कम कर दी है, तीसरी कंप्लेन ये है कि उसका वेट गेन नहीं हो रहा, वो हेल्दी वेट गेन नहीं हो रहा नॉर्मल। तो ये सारे साइंस मिलके एक ही चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि एनिमल में वर्म इन्फेस्टेशन है, उसमें बहुत सारे पैरासाइट्स हैं, वो उसकी डीवर्मिंग करवाते हैं हम। और वो भी डीवर्मिंग सिंगल डोज से नहीं होती, एक डोज दे के फिर बूस्टर डोज देते हैं। पहले उसको एक डोज दे के फिर 15 दिन के बाद दूसरा डोज देते हैं। और ना सिर्फ डीवर्मिंग करवाएं कोई एंथेलमेंटिक ड्रग यूज़ करके, बल्कि कोई आइवरमेक्टिन या इस तरह की जो एक्टोपैरासाइट्स के लिए यूज़ होती हैं वो भी यूज़ करवाएं। तो क्योंकि जो एंथेलमेंटिक्स हैं जो डीवर्मिंग करवाते हैं ओरल लिक्विड फॉर्मेशन में, वो सिर्फ इंटरनल पैरासाइट्स पे अफेक्ट करती है, टिक्स और माइट्स पे नहीं करती, तो उसके साथ साथ वो भी करवाएं। लेकिन ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि अगर एनिमल प्रेग्नेंट है और उसका सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर है, तो उसमें हम ये सारी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को अवॉइड करते हैं, वो नहीं करते, क्योंकि वो फिर एनिमल को स्ट्रेस में ले जाएंगी और कुछ भी उसको नुकसान भी हो सकता है। नेक में लिम्फ नोड्स हैं बहुत सारे, जो कि अगर स्वेलिन है तो वहाँ पे लिम्फ नोड्स में हमारे इम्यून सेल्स हैं, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स और टी सेल्स, ये सारे लिम्फ में होते हैं मौजूद। लिम्फेटिक सिस्टम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है, अगर आपके कोर्स में है तो आगे हम उसको पूरा सीखने की और पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे लिम्फ नोड्स रीजन के करीब हैं, जो कि स्केपुला के आगे एंटीरियर बॉर्डर के बिल्कुल ही करीब एक लिम्फ नोड है, जिसे कहते हैं प्री स्केपुलर लिम्फ नोड। ये फॉर डिजीज डायग्नोसिस, अगर ये बहुत ज़्यादा स्वेलन हो 3 टाइम्स मोर देन नॉर्मल, तो वो नेकेड आई से भी नज़र आते हैं। अदरवाइज अगर माइनर और माइल्ड स्वेलिंग है लिम्फ नोड की, तो आप पैल्पेट करके उसकी स्वेलिंग को फील कर सकते हैं। नॉर्मल एनिमल अगर हेल्दी एनिमल में है तो उसमें लिम्फ नोड्स हार्डली सिर्फ प्रीस्केपुलर, प्रीफीमोरल और इसके मैंडिबुलर, ये 3 लिम्फ नोड्स हैं जो कि कैटल में आप पैल्पेट कर सकते हैं इन नॉर्मल हेल्दी एनिमल में। लेकिन अगर डिजीज है, इन्फेक्शन है, तो वो फिर ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, वो आसानी से पैल्पेट हो जाते हैं। ये लाइव आपको दिखाएंगे, आपको सिखाएंगे कि लिम्फ नोड्स को पैल्पेट किस तरह करते हैं। Check the lymph nodes. They can be found along the jaw line below the ears. Lymph nodes are glands full of white blood cells. They can move lymphatic fluid throughout the body. If the lymph nodes are swollen, it means a sign of the animal is fighting against any infection or any injury. Skin dehydration, जिसको हम स्किन पिंच टेस्ट भी कहते हैं, स्किन को पकड़ के अपने थंब से और 4 फिंगर से पकड़ें और उसको अपनी तरफ खींचें, फिर छोड़ दें। अगर वो क्विकली अपनी असल पोजीशन पे चली जाए तो वो एनिमल डिहाइड्रेटेड नहीं है। लेकिन अगर वो 30 सेकंड्स, 1 मिनट, 2 मिनट ले रही है, तो वो डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन शो कर रहा है कि एनिमल कितना डिहाइड्रेटेड है। स्किन पिंचिंग या स्किन पिंच टेस्ट फॉर जस्ट टू चेक द डिहाइड्रेशन और हाइड्रेशन स्टेटस ऑफ द एनिमल, ये परफॉर्म की जाती है। ये कुछ सिम्टम्स और डिजीजेस के हवाले से एक स्लाइड थी, मैंने इसमें डाल दी है। कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड कोल्ड ईयर्स, हाइपोकैल्सीमिया, अगर जानवर में कैल्शियम लेवल कम होगी, जो कि लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्राइमीपेरस एनिमल्स में होता है, जो फर्स्ट टाइम किसी बेबी को बर्थ दे रहे होते हैं, तो आखिरी ट्राइमेस्टर में कैल्शियम की कमी वाक़ई हो जाती है, क्योंकि जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी का, उसमें जानवर जो बेबी काफ होता है, या जिसको हम क्या कहते हैं एम्ब्रियो कहें या क्या कहें, एक और पर्टिकुलर टर्म आता है, वो याद आ जाएगा तो बताऊंगा। तो उसकी जो है बोन और मसल्स डेवलपमेंट बहुत पीक पे होती है। उस वजह से क्या होता है कि एनिमल जो उसकी मदर होती है उसकी कैल्शियम लेवल डाउन हो जाती है। तो कैल्शियम लेवल डाउन होने से काफ़ी मसाइल पैदा हो जाते हैं। दूसरा, जो लैक्टेटिंग एनिमल्स हैं उसको
मिल्क में कैल्शियम ड्रेन आउट हो जाती है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, तो वो एनिमल बैठ जाता है, उसके टेम्परेचर लो हो जाता है, ईयर्स का बेस जो है वो भी कूल हो जाता है, टेम्परेचर सब नॉर्मल होता है, नॉर्मल से भी 2-3 डिग्री फ़ारेनहाइट नीचे चला जाता है। ये साइंस है। सुनकन आइज अगर हैं तो डिहाइड्रेशन भी है, स्वेलन जा है तो बॉटल जा है, या लो इलेक्ट्रोलाइट्स है, या ब्लड प्रोटीन लेवल्स लो हो गई हैं, पॉसिबल हार्ट फेल्यूर की तरफ जा रहा है। स्वेलन लिम्फ नोड्स हैं तो इन्फेक्शन है, कोई इलनेस है या इंजरी है। नाजल डिस्चार्ज है तो इन्फेक्शन है, इलनेस है। अगर वो एनिमल च्यूविंग कर रहा है, मीन्स रिगर्जिटेशन कर रहा है, तो इट मीन्स एनिमल इज ओके। फिजिकल एग्जामिनेशन में और क्या है जी, अगर हम ये आईज, ईयर्स, हेड, माउथ कैविटी, उसकी टीथ, ये एग्जामिनेशन अगर आपने फिनिश कर दिए तो आगे बढ़ें। अब हमने क्या करना है, यू मूव टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एनिमल। अच्छा, एनिमल का लेफ्ट और एनिमल का राइट किस तरह होता है? जब आप एनिमल के पीछे खड़े हो जाएं, उसकी रियर साइड पे, तो आपका राइट एनिमल का भी राइट होगा, आपका लेफ्ट एनिमल का भी लेफ्ट होगा। और अगर आप एनिमल के आगे खड़े हैं तो फिर वाइस वर्सा है, ठीक है। तो एनिमल एंड एग्जामिन देयर चेस्ट, आप उसकी लेफ्ट साइड पे आ जाएं। अब हेड के एग्जामिनेशन के बाद हम उसकी लेफ्ट साइड पे आ गए। एट द चेस्ट, वहाँ पे आपने क्या देखना है? लेफ्ट साइड पे आप यहाँ से हार्ट बीट या हार्ट रेट चेक कर सकते हैं, जो कि काव में 60 to 80 बीट्स पर मिनट है। रेस्पायरेशन भी यहाँ से लेफ्ट साइड से चेस्ट एरिया के करीब यहाँ से चेक कर सकते हैं, जो कि 10 से 40 रेस्पायरेशन बीट्स होंगे पर मिनट। ये लंग्स की फील्ड है, यहाँ पे आप स्टेथोस्कोप से भी आवाज़ें सुन सकते हैं लंग्स की, या तो आप पहले के ज़माने की तरह कान लगा के भी सुन सकते हैं, लेकिन लंग्स की साउंड्स पेल्पेबल नहीं है। लेकिन आप अगर आस्कल्टेशन के थ्रू, आस्कल्टेशन वो टेक्निक है जिसमें आप स्टेथोस्कोप यूज़ करके इंटरनल ऑर्गन्स के साउंड सुनते हैं, लेकिन उसमें अगर आप परकशन और आस्कल्टेशन दोनों करना चाहें तो भी कर सकते हैं। पेल्पेशन, यहाँ पे 3 टर्मिनोलॉजीज यूज होती रहती हैं जब हम वेटरनरी मेडिसिन सीखने की कोशिश करते हैं। एक होती है पेल्पेशन, जस्ट टू पुट योर फिंगर्स ऑन एनी ऑर्गन एंड फील द स्ट्रक्चर बेलो योर फिंगर्स। दूसरा होता है परकशन, मीन्स स्ट्राइक करें अपने फिंगर से, या हमारे पास होता है परकशन हैमर जो कि रबड़ का बना हुआ होता है, वो उससे फिर स्ट्राइक करके कोई साउंड प्रोड्यूस करें, और वो साउंड या तो आप अपने डायरेक्ट ईयर से सुने या स्टेथोस्कोप लगा के साइड में परकशन करके वो साउंड सुने। ये दो तीन तरीके हैं आपके डिजीज डायग्नोसिस के हवाले से। लंग्स की फील्ड जी ये है जहाँ पे ये ग्रीन डॉटेड। हार्ट रेट कैसे मेजर करते हैं? आस्कल्टेशन, द क्रेनियल पार्ट ऑफ द हार्ट, हार्ट का जो अगला पार्ट है उसको आस्कल्टेट करें। रिक्वायर्स द हेड ऑफ द स्टेथोस्कोप, वो बिल्कुल ही एल्बो के अंदर की तरफ, जो मीडियल साइड है एल्बो की। आपकी एनाटॉमी बहुत अच्छी होगी और इंशाल्लाह आई एक्सपेक्ट दैट इट शुड बी। तो एक होती है लेटरल साइड, दूसरी उसकी मीडियल साइड। तो जो एल्बो की मीडियल साइड है उसके नीचे आप ये स्टेथोस्कोप ले जाएंगे, उसकी बेल वाला हिस्सा, वहाँ पे रख के आपने हार्ट बीट सुननी है। To measure the heart rate, you would use the stethoscope and place it behind the animal's left elbow. It may take a couple tries to find a good sounding heart. साउंड हार्ट का या लंग्स का सुनने के लिए हमने क्या करना होता है, एज मच एज पॉसिबल आपने एक्सटर्नल फ्रिक्शन साउंड्स उसको मिनिमाइज करना है, या तो उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। ना आप हिलें, ना जानवर हिले, ना ही आपका स्टेथोस्कोप हिले, तब भी आपको साउंड सही से एक्यूरेटली सुनने में आएंगे। तो वो आप अगर एनिमल को रेस्ट्रेन प्रॉपरली करें, उसके साथ टचिंग बिहेवियर में आ जाएं, उसके साथ बातचीत करें, तो वो आपका कोऑपरेट करें, फिर आप अपनी मूवमेंट्स को रोक दें। कभी कभी अपनी सांस को भी बहुत ही शैलो लेवल पे ले जाएं, ज़ोर ज़ोर से सांस ना लें, क्योंकि आपकी सांस लेने से आप वो साउंड नहीं सुन पाते। तो स्टेथोस्कोप यूज़ करना ये भी एक टेक्निक है, हुनर है जो आपको सीखना है।
When you check the heart rate, you will check for two things. एक तो हमने हार्ट का रेट चेक करना है कि 60 to 80 बीट्स पर मिनट है कि नहीं है. अगर बढ़ा हुआ है तो टेकिकार्डिया है, अगर कम है तो ब्रेडिकार्डिया है. और दूसरा उस साउंड्स की क्वालिटी चेक करनी है. द हार्ट शुड बी अ लब्ड अप साउंड. ये फिर स्टेथोस्कोप में हम दो तरह के उसके साइड्स हैं. एक उसकी बेल है, दूसरी उसकी डायफ्राम है. तो डायफ्राम में एक ही साउंड सुनने में आता है हार्ट का, और जो उसकी बेल साइड है उसको ऑन करके अगर वो रखेंगे तो वहाँ पे आपको हार्ट का साउंड लब डब सुनने में आएगा. लब डब लब डब लब डब मीन्स सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दोनों साउंड्स आप सुन सकते हैं. लेकिन ये टेक्निक है कि या तो हार्ट बीट सुने, वो एक ही साउंड आता है. और हार्ट अगर आपने दोनों साउंड सुनने हैं सिस्टोलिक डायस्टोलिक, तो आपको स्टेथोस्कोप की सेटिंग थोड़ी चेंज करनी पड़ती है. Whoosh or whistle sounds are signs of other problems. These are called heart murmurs. Whistle sounds या उसमें murmurs आते हैं हार्ट्स में, या whooshing sounds, वो abnormal sounds होते हैं. रेस्पायरेशन रेट चेक कर सकते हैं आप. लंग फील्ड पे जाके स्टेथोस्कोप रखें और साउंड सुने लंग्स के. इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों साउंड सुने. व्हेन यू चेक द रेस्पायरेशन रेट यू विल चेक फॉर टू थिंग्स. एक तो रेट चेक कर रहे हैं, काव में 10 से 40 रेस्पायरेटरी रेट है पर मिनट. क्वालिटी ब्रीदिंग साउंड्स शुड बी वेरी क्लियर. इट शुड नॉट साउंड रेस्पी और ऑब्स्ट्रक्टेड डिस्निया. जिस तरह में भी वीजल साउंड्स होते हैं, जब एयर जो है इन्फ्लामेटेड टिश्यूज के बीच से गुजरती है तो वो सीटियां बजाती हुई गुजरती है. इस तरह के साउंड्स भी आते हैं. और सिनोरिंग साउंड भी है जो कि एनिमल्स में होता है जब ऑब्स्ट्रक्शन होती है. स्टेप्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन. अगेन वी आर कमिंग बैक. अभी तक हम एनिमल की लेफ्ट साइड पे खड़े हैं. स्टमक के एरिया पे आ गए हैं. पहले थे हेड पे, फिर नेक पे, फिर चेस्ट कैविटी पे. अब हम आ गए हैं एब्डोमिनल कैविटी के साइड पे. इन द लेफ्ट एब्डोमेन यू विल एग्जामिन द फॉलोइंग. रूमेन कॉन्ट्रैक्शन. लेफ्ट साइड पे आपने रूमन कॉन्ट्रैक्शंस चेक करनी है कि एनिमल की रूमन. ये वीडियो भी दी गई है एग्जामिनेशन, और ये इसकी पिक्चर्स भी हैं. मैं आपको आगे जाके दिखा रहा हूँ कि जो पैरालंबर फोसा है, जिसे अदर वर्ड्स में हम कहते हैं लेफ्ट फ्लैंक. ठीक है, तो वहाँ पे आपने अपना मुक्का रख के जोर से दबा के खड़े रहना है. तो वो 1 मिनट में र्यूमन जो है 1 से 2 कॉन्ट्रैक्शन लेता है. इस तरह से घूमता है. जैसे वो नहीं देखा कभी आपने, जो छत की भराई करते हैं उसमें सीमेंट बजरी पानी डालते हैं, वो तो गोल घूमता है, लेकिन ये रोटेशन करता है. एक साइड पे जाके फिर वापस दूसरी साइड पे आता है. तो ये इसके टर्नओवर या इसकी रोटेशन 1 मिनट में 1 से 2 तक होती है, जो कि नॉर्मल है. अगर इससे बढ़ेगी तो भी डायरिया हो जाएगा, डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस हो जाएंगी. अगर इससे कम होगी तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी. तो वो आप लेफ्ट फ्लैंक से अपने हाथ से चेक कर सकते हैं. उसको ज़ोर से दबा के रखें फ्लैंक को. फिर ये आप 1 मिनट तक फील करें कि कितनी बार आपकी फिस्ट को ह्यूमन टच कर रहा है. ये करने से सीखते हैं, बात करने से नहीं सीख पाएंगे. ये फिर प्रैक्टिकली आप करेंगे इंशाल्लाह. दूसरा जी है एबोमेज़म प्लेसमेंट. एबोमेज़म की प्लेसमेंट चेक की जाती है कि नॉर्मल है या नहीं है फिजिकल एग्जामिनेशन में. अगर उस तरह की कोई कंप्लेन आई है तो अगर एबोमेज़म अपनी जगह से, ये सिर्फ एक ही पार्ट है कंपाउंड स्टमक का जो कि अपनी जगह छोड़ देता है, कभी कभी ये डिस्प्लेस्ड हो जाता है अपनी प्लेसमेंट, ओरिजिनल नॉर्मल प्लेसमेंट छोड़ के ये ट्विस्टेड या तो घूम जाता है या तो अपनी जगह छोड़ के दूसरी तरफ चला जाता है. ये फिर या तो जानवर ने ज़्यादा खाना खा लिया है, गैसेस ज़्यादा हो गई, उस प्रेशर की वजह से एबोमेज़म डिस्प्लेस्ड हो गया, या उसने कोई जंपिंग की है या किसी जानवर ने उसको मारा है. तो उस सारी सूरतों में एबोमेज़म डिस्प्लेस्ड हो सकता है. एक तो जब एबोमेज़म डिस्प्लेस्ड होगा तो एनिमल पेन फीलिंग करेगा. उसकी जो फीसिस होंगी वो डायरेटिक होंगी, डायरिया लग जाएगी उसको, और वो बहुत ब्राउनिश और ब्लैकिश टाइप फीसिस पास करेगा. और कभी कभी फीसिस पास ही नहीं कर पाएगा और उसको पेन होगा, एनोरेक्सिया होगा, खाना पीना छोड़ देगा जानवर. टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा हुआ होगा, स्ट्रेस में होगा जानवर.
वो उस सूरत में फिर उसको ये हम चेक करते हैं कि एबोमिज्म डिस्प्लेस तो नहीं हो गया। अगर हो गया तो उसकी ट्रीटमेंट इतनी आसान नहीं है, उसकी फिर बहुत ही डिफ़िकल्ट ट्रीटमेंट है। उसको एबोमिज्म को फिर उसके जानवर को उसके अपोजिट साइड पे लेटा के फिर उसको रोलिंग कराते हैं, या तो उसके ऊपर फट्टा लगा के एक बंदा खड़ा कर देते हैं ताकि एबोमिज्म अपनी जगह पे वापस स्लाइड करके चला जाए। हो सकता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज द ओनली वे यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इज द सर्जिकल इंटरवेंशन। फिर सर्जरी करनी पड़ती है, जो भी इतनी आसान नहीं है लार्ज एनिमल्स में, कंपाउंड स्टमक एनिमल्स में। तो एबोमिज्म की प्लेसमेंट को चेक करने का क्या तरीका है कि डिस्प्लेस्ड है कि नहीं है, क्योंकि आंखों से तो आप नहीं देख सकते। एक तो सिमेट्री चेक करते हैं जानवर की, जब जानवर के आप पीछे खड़े रहते हैं तो उसकी एब्डोमिनल सिमेट्री चेक करते हैं कि वो सिमेट्रिक है या असिमेट्रिक है। उसकी जो एब्डोमिनल जो लुक होगा वो पियर शेप होगा, ठीक है। तो अगर एक साइड पे वो बढ़ा हुआ है, एक साइड पे कम है, तो ये उसका साइन है कि हो सकता है एबोमिज्म डिस्प्लेस्ड हो, या कोई गैसेस हो, या कोई वाटरी कलेक्शन हो, एबनॉर्मल वाटर कलेक्शन होगा, या एडिमेटर स्वेलिंग है, कुछ भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपने एग्जामाइन करनी है। ह्यूमन कॉन्ट्रैक्शन 1 मिनट में 1 से 2 दफ़ा होती है। ये आप लेफ्ट साइड से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इसके चेक करने के राइट साइड पे स्टेथोस्कोप से चेक करते हैं, फ्लैंक रीजन से और या चेस्ट रीजन से। यहाँ पे टू मेजर द ह्यूमन कॉन्ट्रैक्शन प्लेस स्टेथोस्कोप और सेंटर ऑफ द बॉडी वेयर द रेड सर्कल इज बिलो। ये जो रेड सर्कल है लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे आप इसकी ह्यूमन कॉन्ट्रैक्शन के साउंड सुन सकते हैं रख के, और राइट फ्लैंक पे भी स्टेथोस्कोप रख के आप उसके साउंड सुन सकते हैं। लेफ्ट साइड से आप उसको मैन्युअली अपने हाथ के जोर से चेक कर सकते हैं कि ह्यूमन की कॉन्ट्रैक्शन शामिल है या नहीं है। लिसन फॉर व्हाट साउंड लाइक लो रंबल्स ऑफ थंडर while watching for a minute to pass। थंडर कहते हैं कि कोई गरजने की आवाज हो, और रंबल्स की क्या माने हैं, a continuous deep resonant sound like distant thunder। ठीक है, एक मुसलसल गहरा और खारदार साउंड होगा जो कि जानवर में आपको सुनने में आएगा, वो ह्यूमन की कॉन्ट्रैक्शन की साउंड होगी। लो ह्यूमन कॉन्ट्रैक्शन इज अ सिम्टम ऑफ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। अगर वो 1 मिनट में 1 से कम है उसकी टचिंग, तो वो प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस को इंडिकेट कर रहा है। ये है राइट साइड पे अगर जाएंगे तो स्टेथोस्कोप से आपने इसके रंबल थंडर साउंड सुनने में आएंगे आपको ह्यूमन मोटिलिटी के या ह्यूमन कॉन्ट्रैक्शन के। लेफ्ट साइड से आप अपना फिस्ट यहाँ पे जोर से दबा के रखें, फिर उसकी फील करें कि ह्यूमन आपके हाथ को कितनी दफ़ा टच करता है। ये दोनों तरीके हैं ह्यूमन की कॉन्ट्रैक्शन चेक करने के लिए। इसकी वीडियो भी दी गई है आपको। एबोमिज्म प्लेसमेंट को चेक करने के लिए, the epimism is a fourth stomach chamber of the cow. It operates in the same way your stomach works. If a cow stops eating or has other problems, the epimism can fill up with gas and twist over itself. The epimism will swell with gas like a balloon. Epimism, if the cow has a displaced epimism, तो ये एबोमिज्म दोनों तरफ से डिस्प्लेस हो सकता है, राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से। अभी हम एनिमल के लेफ्ट साइड पे खड़े हैं और उसको चेक कर रहे हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। तो अगर ये लेफ्ट साइड पे एबोमिज्म डिस्प्लेस्ड होगा तो उसे कहते हैं LDA, लेफ्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एबोमिज्म। अगर ये राइट साइड पे डिस्प्लेस्ड है तो उसे कहते हैं RDA, राइट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एबोमिज्म। सो डिटेक्ट दिस बाय पिंगिंग द काउ। अब इसकी डायग्नोसिस किस तरह होगी? आपने कुछ खास एरिया है एबोमिज्म की एक्सटर्नली, उन पे आपने जो इसकी कोस्टा है। अब अगर आप नहीं समझ पा रहे कोस्टा तो मुझसे पूछ लिए, अभी पूछ लें। अगर समझ में आ रही है तो ठीक है, दैट्स गुड। दिस इज टोटली द एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी व्हिच यू हैव बीन टॉट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द DVM कोर्सेज। कोस्टा कहते हैं रिब्स को,
तो इंटरकॉस्टल स्पेस को कहते हैं जो दोनों रिब्स के बीच का स्पेस होता है। तो ये काव में कितनी होती है रिब्स बताएं प्लीज, आप में से कोई बता दे, एक बता दे कोई भी। कितने पेयर्स होते हैं रिब्स के काव में? नोबडी इज देयर? क्या सो गए क्या सारे? कहाँ चले गए? Are you सर with आई me? थिंक 14, यस सर, सर आई थिंक 14 पेयर्स होते हैं, आई थिंक सो, यस Yeah, सर, 13 to 14. यस सर 13 to 14 होते हैं। 13-14 होते हैं सर। 13 सर। ओके 13 पेयर्स होते हैं, टोटल 26 रिब्स होती हैं काव में। सो आई थिंक योर एनाटॉमी इज गुड। तो उनके स्पेस के बीच में हम क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप रख के फिर परकशन करते हैं, अपने हाथ से स्ट्राइक करते हैं उसमें, फिर साउंड सुनने की कोशिश करते हैं। तो जो डिस्प्लेस्ड एबोमेज्म होगा उसकी साउंड आती है, पिंगिंग साउंड कहते हैं उसे। पिंगिंग साउंड आपको बताने के लिए बुक्स में ये लिखा है कि अगर आप किसी गिलास में सिक्का फेंकें तो जो सिक्के की आवाज़ बनती है गिलास में फेंकने की, वो उसको पिंगिंग साउंड कहते हैं। वो नॉर्मली अगर आप कोस्टा के ऊपर, अगर रिब के ऊपर अपना स्टेथोस्कोप रख के और रिब को ही आप स्ट्राइक करेंगे तो वो भी साउंड जस्ट लाइक सिमिलर साउंड विद पिंगिंग साउंड। लेकिन इंटरकॉस्टल स्पेस पे रखेंगे तो उस तरह की साउंड कोई नहीं होगी। लेकिन अगर एबोमेज्म डिस्प्लेस्ड है तो वो पिंगिंग साउंड देगा। तो वो एक डायग्नोस्टिक टूल है आपको, कि आप उससे डायग्नोस कर सकते हैं कि एबोमेज्म डिस्प्लेस्ड है या नहीं है। अदरवाइज तो एक्सरे करवा लें, फिर अल्ट्रासाउंड करवा लें, उसमें भी महारत चाहिए वो सीखने के लिए और उसको करने के लिए। इस साउंड को बांजो साउंड भी कहा गया है। इफ द स्टमक हैज ट्विस्टेड, इसको एबोमेज्म को ट्रू स्टमक कहते हैं कंपाउंड स्टमक में, और उसके साउंड को कहते हैं बांजो साउंड या ये पिंगिंग साउंड थ्रू द स्टेथोस्कोप व्हेन यू फ्लिक द एरिया। ये जी एरिया है 13th रिब से लेके पीछे चले जाएं आप, नौवीं रिब से लेके 13 रिब तक, इसके बीच के स्पेस को यहाँ से लेके नीचे तक, फिर यहाँ से लेके नीचे तक, ये हम चेक करते हैं फॉर पिंगिंग साउंड। ये आप सीखेंगे लाइव जब आप प्रैक्टिकल करेंगे। ये एरिया है पिंगिंग साउंड की, टिपिकल एरिया फॉर लेफ्ट डिस्प्लेस्ड एबोमेज्म LDA के लिए। अब ये क्यों होती है मैंने बता दिया, ट्रीटमेंट क्या होता है, इसकी करेक्शन किस तरह होती है ये भी मैंने आपको बता दिया है। ये जो एरिया अभी शो कर रही है ये एबोमेज्म की नहीं है, यहाँ पे गैसेस एक्यूमुलेट होती हैं जो कि भी स्टमक और इंटेस्टाइनल गैसेस होती हैं, वो ऊपर जाके यहाँ पे जमा हो जाती हैं। टिपिकल एरिया फॉर ह्यूमन गैसेस कैप। ये दोनों दिखाए गए हैं। यहाँ पे आप इसकी एबोमेज्म डिस्प्लेसमेंट दे सकते हैं, देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं पिंगिंग साउंड। उसके ऊपर अगर देखेंगे तो ये गैसेस एक्यूमुलेशन के साउंड्स वहाँ पे होंगे। तो एरिया वाइज ये मार्क्ड किए गए हैं। अडर को चेक कर लें। आफ्टर यू चेक फॉर ह्यूमन कंट्रैक्शन एंड फॉर अ ट्विस्टेड स्टमक यू विल मूव टू ऑन टू द अडर। अभी आपने स्टमक और ह्यूमन कंट्रैक्शन और पिंगिंग साउंड, एबोमेज्म, रेस्पिरेटरी साउंड सारे आपने ये देख लिए। अब आप सेम साइड लेफ्ट साइड पे खड़े हैं और नीचे आ जाएं। अडर को चेक कर लें कि कोई स्वेलिंग, कोई एडिमा, रेडनेस, हॉटनेस या कूलनेस तो नहीं है। हार्ट क्वार्टर में इंडिकेट इन्फेक्शन, मिस्टाइटिस, या उसमें आप अगर सर्फ टेस्ट कर सकते हैं तो मिल्क चारों टीट्स की जो है वो सर्फ टेस्ट कर लें कि अगर सब क्लिनिकल मिस्टाइटिस होगी तो वो वहीं पे आपको इंडिकेट हो जाएगी। दूसरी टेस्ट है कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट। उसमें भी एक केमिकल दिया जाता है आपको, वो आप मिल्क के साथ सिमिलर क्वांटिटी में मिक्स करके देखें। अगर उसमें क्लॉटिंग हो रही है या प्रेसिपिटेशन हो रही है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मेस्टाइटिस हो रही, अंदर से मेस्टाइटिस शुरू हो गई है, इन्फेक्शन शुरू हो गया है, लेकिन क्लिनिकली दिख नहीं रहा है।
रियर एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, अब आपने लेफ्ट साइड पूरी कर दी, अब आप बिल्कुल ही बैक साइड पे आ गए एनिमल के। आफ्टर examining the udder you would move on to examination of the rear of the cow. Here you will check the following: rectal temperature, यहाँ से आप एनिमल का रेक्टल टेम्परेचर चेक कर सकते हैं थ्रू थर्मामीटर। आप उसके यूरिन सैंपल्स भी ले सकते हैं फॉर यूरिन डिपिस्टिक। आपने डिपिस्टिक लगाई यूरिन में, वहाँ पे आपको यूरिन की पीएच, यूरिन में कीटोन्स हैं कि नहीं है, प्रोटीन्स हैं कि नहीं है, स्टोन्स हैं कि नहीं है, सारा कुछ उसमें आ जाता है यूरिन डिपिस्टिक्स में। और रियर फीट और लेग्स वो देख लें, उसके बाद उसका मैन्योर या स्टूल पास वो चेक कर लें, उसमें कोई डिफॉर्मिटी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद अगर आप रेक्टल एग्जामिनेशन करना चाहें तो कर सकते हैं फ्रॉम रियर साइड। उसमें मेल एनिमल में भी होती है रेक्टल पैल्पेशन और फीमेल एनिमल्स में भी होती है, जस्ट टू पैल्पेट द पेल्विक ऑर्गन्स, चाहे वो मेल के हों चाहे फीमेल के हों। फीमेल में यूट्रस है, वजाइना है, सर्विक्स है, फैलोपियन ट्यूब्स हैं, ओवरीज हैं, ये सारी आप पैल्पेट कर सकते हैं। यूरिनरी ब्लेडर भी आप पर रेक्टम पैल्पेट कर सकते हैं एनिमल का। उसके अलावा पर रेक्टम आप ह्यूमन भी पैल्पेट कर सकते हैं फॉर देयर नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड वर्किंग मूवेबिलिटी। उसको चेक किया जाता है और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको पर रेक्टम आप करेक्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ओवरीज पे सिस्ट बने हुए हैं और ओवरीज में जो है वो एडियंस हैं लिगामेंट्स की, मस्कुलर्स की, तो आप ओवरीज को पर रेक्टम मसाज देके उसको उस चीज़ों से रिलीफ भी दे सकते हैं मैन्युअली। मेल एनिमल में ग्लैंड्स हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड है, वो आप पैल्पेट कर सकते हैं। फिर यूरिनरी ब्लेडर है, स्टमक है, दूसरे ऑर्गन्स भी चेक कर सकते हैं। काउ टेम्परेचर चेक करते हैं जी। नॉर्मल टेम्परेचर काउ का 101 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 103 तक भी काउ में नॉर्मल होता है। और समटाइम्स सम ऑफ द बुक्स वो कह रहे हैं कि 103.5 तक भी काउ का टेम्परेचर नॉर्मल है। तो अगर वो टेम्परेचर बढ़ जाए 104 या उससे बढ़ जाए तो वो मेट्राइटिस, मेस्टाइटिस, नमोनिया, कोई भी इन्फेक्शन होगा, कोई डिजीज़ होगी तो बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर लो है, 101 से भी लो है, 100 है, 99 है, 98 है, तो वो शो कर रहा है कि एनिमल को या तो मिल्क फीवर है या डाइजेस्टिव एबनॉर्मलिटीज़ हैं, कीटोसिस है या इंडाइजेशन है। हम क्यों जी टेम्परेचर चेक करते हैं? आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कोई इलनेस अर्लियर, उसको चेक करें, आइडेंटिफाई करें। मिनिमाइज एंटीबायोटिक यूजेज एंड मिल्क डिस्कॉर्ड, तो उसमें भी हम अगर टेम्परेचर नहीं है तो खामखा में एंटीबायोटिक का स्ट्रेस ना दें एनिमल को, और मिल्क को डिस्कार्ड भी ना करें। बी आइडेंटिफाइंग इलनेस अर्लियर, मेंटेन ड्राई मैटर इनटेक, टेम्परेचर से फिर उसका ड्राई मैटर इनटेक मेंटेन रखें। मिल्क प्रोडक्शन, मिनिमाइज इनवॉल्यूटरी कलिंग, खामखा में जानवर को स्लॉटर ना करें, अगर वो सही है तो उसको करेक्ट करने की कोशिश करें। So that was number 30 slide. Still we have enough time. If you would like to see the videos with me, अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं मेरे साथ तो वो भी तकरीबन 10-15 मिनट की वीडियोस हैं, 7 से 8 वीडियोस हैं, वो दिखा दें। या अगर वो आप खुद से देखना चाहते हैं तो मैं ये आपकी पीपीटी स्लाइड पूरी कर दूं अभी। व्हाट वुड यू लाइक? दिखा दे सर। सर आप वीडियो दिखाएं दिखा दें और सर आप थोड़ा वीडियो एक्सप्लेन भी कर लें। यस सर। ओके, इनको स्लाइड्स को एक नज़र देख लें। यूरिन कीटोसिस किस तरह चेक करते हैं, रियर फीट और लेग्स की एग्जामिनेशन क्या होती है, स्टूल की एग्जामिनेशन में क्या चेक करते हैं, स्टूल में कौन से सिम्टम्स आते हैं। फिर राइट साइड पे आ जाते हैं। अभी हमने लेफ्ट साइड पूरी की थी, राइट साइड पे क्या क्या हमने चेक करना है। विदर पिंच क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वीडियो भी है। विदर पिंच जहाँ पे ये इस एग्जामिनर का हाथ है वेटरिनेरियन का, यहाँ पे पकड़ के ज़ोर से उसको पकड़ के खींचते हैं तो ये जो स्पाइनल कार्ड की रीजन है ये एनिमल
वेंट्रली, ये होता है डॉर्सल ऊपर का हिस्सा, नीचे वेंट्रल, वेंट्रली इसको फ्लेक्स करता है, झुका देता है। तो ये विदर पिंच है, ये नॉर्मल साइन है। अगर विदर पिंच नॉर्मल होगी, आप जैसे ही स्किन को पकड़ के खींचेंगे इस जगह से, तो वो एनिमल नीचे की तरफ झुक जाएगा स्पाइनल कॉर्ड की जगह से, या लंबर सेक्रो लंबर की जगह से, लंबर एरिया से। तो ये एक नॉर्मल हेल्दी साइन है। अगर ये नहीं होता, अगर वो विदर पिंच पे नहीं नीचे झुकता एनिमल एब्डोमिनल साइड से, तो ये कोई प्रॉब्लम है जिसको इंडिकेट कर रहा है, या तो हार्डवेयर डिजीज है या उसमें कोई पेन है, एब्डोमिनल पेन है, जिसकी वजह से वो उसका विदर पिंच नॉर्मल नहीं है। पिंच के दो किस्म है, एक है स्किन पिंचिंग, दूसरा है विदर पिंचिंग। ये आपने वीडियो में भी देखना है अभी, और आगे जाके इसको सीखना भी है, प्रैक्टिकली करना भी है। रेक्टल एग्जामिनेशन में क्या देखेंगे, विदर पिंच असल में क्या है, क्यों करते हैं, और ये एक्टोपेरासाइट्स हैं, लाइसिस हैं, टिक्स हैं, माइट्स हैं, मिसलिनियस, उसकी प्रेप्यूस को चेक करें, उसकी एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स को चेक करें, कोई स्टोन्स वगैरह तो नहीं है। इक्वाइन फिजिकल एग्जामिनेशन है, उसमें क्या क्या चेक करते हैं, बिहेवियर है, गम्स का कलर है, हाइड्रेशन टेस्ट करते हैं, सीआरटी चेक करते हैं, फिर ये इसके यहाँ पे पल्स रेट चेक करते हैं, इसकी फेशियल आर्टरी को पेल्पेट करके, ये इसकी जुगुलर वेन को प्रोमिनेंट कर रहे हैं, बॉडी कंडीशन स्कोरिंग करते हैं, बॉडी कंडीशन स्कोरिंग है, एटीट्यूड है, नॉर्मल वैल्यूज़ हैं एडल्ट्स में, नॉर्मल नियोनेट्स में कौन से वैल्यूज़ हैं, फिर उसकी बॉडी की वेट मेजरमेंट करने के लिए फार्मूला है, शेफर्स फार्मूला, उसकी चेस्ट सरकमफ्रेंस हाइट पे डिपेंड करता है, वो मेजरमेंट करते हैं, इसकी हाइट किस तरह से चेक करते हैं और सरकमफ्रेंस किस तरह चेक करते हैं, कौन सा फार्मूला लगता है उससे चेक करते हैं। ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी को पेल्पेट करें फॉर पल्स रेट, कॉक्सिजल आर्टरी जहाँ से ब्लड कलेक्शन भी हो सकती है। ये पूरी पीपीटी आपके उस पे है आज के लेक्चर में। चलें ये वीडियोस देखते हैं। पिंचिंग ऑफ विदर्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इस साउंड को रोक देता हूँ। ये यहाँ से पकड़ेंगे आप उसको हम्प के नीचे से, तो जैसे पकड़ के जोर से खींचेंगे तो ये स्पाइनल कॉर्ड जो है वो नीचे झुक जाएगा। एनिमल will flex its spinal cord area ventrally. This is the normal wither pinch. जनरल क्लिनिकल एग्जामिनेशंस हैं, ये वीडियो थोड़ी लंबी है, 5 मिनट की है। ऑब्जर्वेशन, आपने एनिमल के अराउंड एक चक्कर लगाना है गोल, ठीक है। उससे आप देखेंगे कि एनिमल का बिहेवियर, एटीट्यूड, कोई डिफॉर्मिटी, अलर्ट है, डल है, दूर से उसको गोल एक आप चक्कर लगा के एक दफ़ा बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन उसको दूर से चेक करते हैं। करीब जाएंगे तो वो तो आपके स्ट्रेस से कुछ और साइंस शो करेगा, लेकिन दूर से बॉडी कंडीशन, बिहेवियर, शेप ऑफ एब्डोमेन, वो सिमेट्री चेक करें, लिम्स, गेट, रेस्पिरेशन, ऑब्वियस एब्नॉर्मलिटीज, ये सारी कुछ आप दूर से ही एक दफ़ा गोल राउंड चक्कर लगा के एनिमल को ऑब्जर्व करें। उसके बाद आपने हिस्ट्री ले ली है पहले से है, अभी एग्जामिनेशन फ्रॉम टेल टू हेड, ये टेल टू हेड कर रहे हैं। हमारी पीपीटी हेड टू टेल बनी हुई थी, ये दोनों तरीके हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन जिस तरह से ये कंफर्टेबल खड़े हुए हैं ना, 1 मिनट, आई नीड मोर टाइम टू शो यू। जिस तरह से ये लोग कंफर्टेबल खड़े हुए हैं, तो इनको पता है कि इनके एनिमल्स ये इसकी हैबिचुअल हो गए हैं इनकी टचिंग से, और इनके साथ वो घुल मिल गए हैं, इसी वजह से ये दे आर मच मोर कॉन्फिडेंट टू ऑल परफॉर्म द फिजिकल एग्जामिनेशन विदाउट एनी रेस्ट्रेनिंग। लेकिन हमारे और जानवर इतने कोऑपरेटिव और इतने फेमिलियर टचिंग नहीं है,
लेकिन वो भी ओनर और उसके एनिमल अटेंडेंट के साथ इतने कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन वेटरनेरियन या जो स्ट्रेंज बंदा है बाहर से, वो इस तरह की प्रैक्टिस मेरे रिकमेंडेशन पे कभी ना करे, क्योंकि जिस तरह से ये वेटरनेरियन खड़ी हुई है, यहाँ पे उसने किक खा देनी है। अगर यहाँ कोई स्ट्रेंज बंदा खड़ा होगा, एनिमल को फील हो जाता है, जब उसको टच करता है कोई स्ट्रेंज बंदा, तो उसके हाथ की टचिंग से उसको फील हो जाता है कि ये अपना बंदा नहीं है, तो वो उसको किक भीख मार सकता है। तो इससे थोड़ा केयरफुल रहिएगा। ये बॉडी टेम्परेचर चेक हो रहा है यहाँ से। फिर वल्वर म्यूकोजा, यहाँ से भी आप CRT कर सकते हैं वल्वा म्यूकोजा से, या गम म्यूकोजा जैसे मैंने पहले बताया टीथ के ऊपर से, और वल्वर म्यूकोजा से भी CRT कैपिलरी रिफिल टाइम। अब ये ह्यूमन मोटिलिटी चेक हो रही है लेफ्ट साइड से। थंब बना के, फिस्ट बना के उसको जोर से प्रेस करें और फिर टाइम नोट करें। 1 मिनट में अगर 1 से 2 दफा ह्यूमन आपको टच करता है तो ये फिर ह्यूमन मोटिलिटी नॉर्मल है। ये प्री स्केपुलर लिम्फ नोड पैल्पेट किया जा रहा था, फिर वापस आ गए हैं ह्यूमन मोटिलिटी पे। अब ये कर रहे हैं कि पैल्पेट अडर एंड मिल्क वेन्स, वो नॉर्मल हैं या बल्जिंग हैं या इंगोज्ड हैं। जब ये मिल्क वेन्स बिल्कुल ही फूली हुई होती हैं तो उसे कहते हैं इंगोज्ड वेन्स या इंगोज्ड जुगुलर वेन। अच्छा, हार्ट बीट चेक करते हैं जी। ये एल्बो के बिल्कुल ही अंदर की तरफ मीडियल साइड पे, एल्बो की मीडियल साइड पे हार्ट बीट चेक अस्कल्टेट करें थ्रू स्टेथोस्कोप और हार्ट बीट चेक करें। अस्कल्टेट लंग फील्ड, अभी लंग फील्ड को अस्कल्टेट करें। रेस्पिरेटरी साउंड्स चेक करें नॉर्मल है कि नहीं है। डेप्थ है, रिदम है, करेक्टर है, ये सारी चीजें होती हैं साउंड्स में। I'm sorry. अस्कल्टेट द ट्रेकिया, ट्रेकिया से भी आप रेस्पिरेटरी साउंड सुन सकते हैं या रेस्पिरेटरी रेट भी मेजर कर सकते हैं। ये विदर पिंच, इस ने जो मेल बंदा खड़ा है, 1 मिनट, I get your video back. She is auscultating the trachea. Now he done the wither pinch. Did you see that? Now be alert to see the wither pinch. When he pressed the area, the spinal cord will be flexed ventrally. ये wither pinch किया उन्होंने। ह्यूमन और रेटिकुलम को आप साउंड सुनना चाहते हैं तो उसको अस्कल्टेट करें स्टेथोस्कोप के थ्रू। ये बड़े ही एक्सपीरियंस्ड हैं, या तो इसकी वीडियो की स्पीड ज़्यादा है, यहाँ स्पीड ज़्यादा है, ये जल्दी जल्दी कर रहे हैं, अदरवाइज इट विल टेक मोर टाइम। अच्छा, ये पिंगिंग साउंड सुन रहे हैं, देखें किस तरह से उसको हिट भी कर रहे हैं एक हाथ से, दूसरे हाथ से स्टेथोस्कोप के थ्रू पिंगिंग साउंड सुना जा रहा है फॉर लेफ्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एबोमिज्म। ये देखें एक हाथ से उसको हिट कर रहे हैं इंटरकॉस्टल स्पेसिस पे। This is also a technique to listen the pinging sound of displaced abomism. चलें, ये अभी आ गए आप राइट साइड पे। आजकल आप दोनों साइड लंग्स के साउंड सुने जा रहे हैं। सुन सकते हैं एनिमल। एबोमिज्म, अब ये राइट साइड पे सीकम और एबोमिज्म की डिस्प्लेसमेंट या स्वेलिंग को चेक करने के लिए, ये उसको पिंगिंग साउंड करवाने के लिए एक हाथ से स्ट्राइक कर रहे हैं, दूसरे हाथ पे स्टेथोस्कोप रखा हुआ। एग्जामिनेशन ऑफ द हेड एंड नेक, ये ड्यूलेप और उसके बाद ब्रिसलेट एरिया ऑफ द एनिमल, वहाँ पे एडिमेटस कोई स्वेलिंग, बॉटल जा या लोअर जा पे कोई स्वेलिंग या एडिमा या सलाइवरी ग्लैंड्स, लिम्फ नोड्स भी आप चेक कर सकते हैं। आईज ऑन ईयर्स चेक कर रहे हैं, आईज नॉर्मल इन कलर, नो sunken eyes एंड नो रेडिश कंजक्टिवा।
साइनसेस चेक कर रहे हैं हेड के। जुगुलर वेन ट्रॉमेटिक पेरिकार्डाइटिस में बहुत ही बल्जिंग या इंगोज्ड होती है, लेकिन नॉर्मली वो इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती है। फिर आप उसको प्रेस करके, अगर आपने आईवी कोई मेडिकेशन देनी है तो उसको प्रेस करके रखना पड़ता है, फिर वो प्रोमिनेंट होती है। स्किन पिंचिंग, स्किन टेस्ट फॉर डिहाइड्रेशन, जस्ट द ग्रास्प द स्किन विद योर थंब एंड forefinger and leave it, stretch it and leave it. Now inspect the oral cavity, smell, lesions, gingiva, tongue, teeth, muzzle, moist, discharge, trauma. ओरल कैविटी की एग्जामिनेशन हो रही है, कोई उसमें लीजन है, कोई स्मेल है, बेड स्मेल है, कीटोन स्मेल्स भी आती हैं या प्यूट्रीफाइड स्मेल्स भी आती हैं ओरल कैविटी से, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो। दैट वाज अ वेरी क्विक रिव्यू ऑफ योर लेक्चर टुडे। सो दिस वाज अ वेरी गुड वीडियो विथ मी। हॉर्स की फिजिकल एग्जामिनेशन देख लें किस तरह की है। Temperature, heart rate, respiration rate, whatever it is. So she is giving some voice messages. Talking about how to do a physical exam on your horse. The first part of the physical exam we're going to discuss is how to take your horse's temperature. We recommend getting an inexpensive digital rectal thermometer from your pharmacy. It does not have to be an animal-specific thermometer. You're going to let your horse know that you're next to his side. Apply a small amount of lubrication. It can be KY jelly, Vaseline, or even spit. Lift up your horse's tail and insert the rectal thermometer into his rectum. Press the button to start it and wait for it to come up with the temperature. A normal horse's temperature should be between 99 and 101. I'm sorry. ये जो I just want to make it minimize. Welcome to East County Large Animal Practices एक चीज कहनी थी कि आप जब प्रैक्टिकल क्लास में आएंगे तो आपके पास अपना, हर एक के पास अपना थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, एप्रॉन या डोंगरी वगैरह ये पहन के आनी है, ताकि आपको प्रैक्टिकल करने में आसानी हो। थर्मामीटर कुछ लोगों को पढ़ने में बहुत दुश्वारी होती है, उसकी जो मर्क्यूरी होती है बीच में, जो सिंपल थर्मामीटर है, ह्यूमन साइड पे भी यूज़ होता है, वो हम एनिमल पे भी यूज़ करते हैं, तो कुछ लोगों को वो पढ़ने में दुश्वारी होती है, तो वो डिजिटल थर्मामीटर लेके आ जाते हैं। तो उनको लिए ये एडवाइस है कि आप भले डिजिटल ले आएँ, डिजिटल पढ़ना आसान है, उसमें तो डिजिट्स आ जाते हैं, लेकिन आपको वो सिंपल थर्मामीटर भी पढ़ने आना चाहिए, अदरवाइज यू विल बी काउंटेड एज अ फेलियर इन योर सब्जेक्ट। तो वो भी अगर आपके पास वो नहीं है तो रेडली अवेलेबल थर्मामीटर तो लोकल मार्केट्स में वही है जो सिंपल है, डिजिटल नहीं है, तो वो भी आपको पढ़ना आना चाहिए, आपके पास ये हुनर होना चाहिए, वो भी सीखने पड़ेंगे आपको। My name is Dr. Carlisle Rand. I'm going to let your horse know that you're next to a digital rectal thermometer from your pharmacy. It does not have to be an animal-specific thermometer. I'm going to let your horse know that you're next to his side. Apply a small amount of lubrication. It can be KY jelly, Vaseline, or even spit. Lift up your horse's tail and insert the rectal thermometer into his rectum. Press the button to start it and wait for it to come up with the temperature. A normal horse's temperature should be between 99 and 101.5 degrees. ये कोई भी थर्मामीटर हो, जब आप उसकी मर्क्यूरी एंड उसके रेक्टम में डालते हैं तो उसके एक प्रोटोकॉल है जो हम आपको लाइव भी बताएंगे। एक तो उसको एक साइड पे रख के प्रेस करके रखें ताकि वो म्यूकस मेम्ब्रेन से टच हो, ना कि वो फीसिस के बीच में हो। दूसरा ये कि एक से तकरीबन हम 2 मिनट आप। The physical exam is your horse's pulse. You can get your horse's pulse by either listening to their heart with a stethoscope if you have one, or you can feel their pulse. A normal horse's pulse is between 30 and 40 beats per minute when they're at rest. The best place to listen to your horse's heart is on the left side in the girth area, right behind the elbow. In muscular breed horses, such as quarter horses, you may have to shove the stethoscope up into their armpit a bit to best hear the heart. Have a stethoscope. The best place to feel your horse's pulse is at their submandibular artery, under their cheekbone, right where it ties into their lower jaw.
पल्स, हार्स की पल्स देखने के लिए सब मैंडिबुलर आर्टरी को पैल्पेट किया जा रहा है, ये लोअर जाके बिल्कुल ही करीब है मैंडिबुलर एरिया पे. You can kind of run your fingers over the jaw and you feel a bump, which is the artery. Apply gentle pressure in order to feel the pulse, and again count for 15 seconds and multiply the number of pulses you feel. The next part of the horse's physical exam is their respiration rate. The easiest way to take the respiration rate is to watch the rise and fall of their abdominal wall as they breathe. At rest, रेस्पिरेशन रेट चेक करने के लिए आप उसके एब्डोमिनल और चेस्ट मूवमेंट्स को देखें कि कितनी दफ़ा फूल रही हैं और कितनी दफ़ा सिकुड़ रही हैं, तो वो उसका ये रेस्पिरेटरी रेट भी शो करता है. दूसरा तरीक़ेकार है उसके नॉस्ट्रल्स के आगे हाथ रख दें, फिर कितनी दफ़ा एयर आपको टच कर वो आप काउंट कर लें, रख के उससे साउंड सुन लें एक्सपायरेटरी और इंस्पायरेटरी, और एक्सपायरेटरी और इंस्पायरेटरी साउंड्स को सुनने के वो हम एक रेस्पिरेशन रेट काउंट करेंगे. ठीक है, या तो एक्सपायरेशन काउंट कर लें या इंस्पायरेशन. अगर दो कर रहे हैं तो फिर वो एक काउंट होगा. a normal horse's respiration should be between 10 and 20 breaths per minute. Another part of the physical exam that you can easily do is looking at your horse's mucous membranes. Normally, horse's mucous membranes should be a light pink color and very moist. You check their mucous membranes by flipping up their upper lip and assessing the color, which should be light pink, the moisture, which should be very nice and slimy and moist, as well as the capillary refill time. To get the capillary refill time, press with your thumb on the gum to blanch the area and then release, and the pink color should return in less than 2 seconds. The final part of the physical exam that we're going to talk about is gastrointestinal. उसको रिलीज करें. अगर वो वाइटिश एरिया फिर पिंकिश एरिया में, लाइट पिंकिश एरिया में कन्वर्ट हो जाए विद इन 2 सेकंड्स, तो ये नॉर्मल सीआरटी है, कैपिलरी रिफिल टाइम. अगर 2 सेकंड्स से ज़्यादा टाइम लेती है तो वो एबनॉर्मल है, और अगर 1 सेकंड से कम लेती है तो वो भी एबनॉर्मल है. तो 1 or 2 सेकंड्स, विद इन 1 or 2 सेकंड्स उसको कैपिलरी रिफिल टाइम फिर वापस आना चाहिए. ये शॉक, हीट स्ट्रोक या हार्ट फेलियर की इंडिकेशन हो सकती हैं अगर ये एबनॉर्मल है तो. Intestinal sounds. You should listen to the GI sounds on both sides of your horse in both the upper and lower quadrants. You can listen either with a stethoscope or by placing your ear against your horse's abdomen. Normally, horses should have fairly active gastrointestinal sounds. So if you put your ear against their side, you should hear a regular gurgling or rumbling noise. If you listen for about 15 seconds and don't hear any noises, this can indicate that your horse has decreased gastrointestinal motility. So that wraps up how to do a simple physical exam on your horse. We recommend practicing at home when you're not stressed out in the case of an emergency, so that you know how to do it. And to assess hydration. ये स्किन पिंच टेस्ट डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है. How to check the skin pinch test in the horses for dehydration. With a skin pinch, stand on the left side of your horse just in front of the shoulder. Use your right thumb and forefinger to gently pinch a fold of skin from the point of the shoulder. Release it and watch the return time. In a well-hydrated horse, the return should be almost immediate. कैटल पे ये सेम टेस्ट कैटल पे किस तरह होगी? स्किन पिंच टेस्ट फॉर चेकिंग द हाइड्रेशन स्टेटस ऑफ द एनिमल, कि वो हाइड्रेशन उसकी सही है या नहीं है, डिहाइड्रेटेड तो नहीं है. नेक रीजन पे करें या शोल्डर पे करें. स्किन को थंब और फिंगर के बीच में पकड़ के खींचें, फिर छोड़ दें. Of the abdomen that may indicate. It is helpful to begin by observing the cow from a distance to assess the animal's symmetry, stance, and body condition. काव को दूर से एग्जामिन किया जाए, उसके राउंड एक चक्कर लगा के देखा जाए कि कोई उसमें एबनॉर्मलिटी, उसका बिहेवियर सही है नहीं है.
अच्छा, ये यूरिन कलेक्शन सैंपल है। अगर आप रियर साइड पे एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे आप यूरिन कलेक्शन के लिए उसके एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स के नीचे जो कि एरिया का नाम क्या है, इंग्वाइनल रीजन है, फ्रॉम अडर टू अप टू वल्वा, उसके बीच में यहाँ पे आपने राउंड सर्कुलर मोशन में मूवमेंट देनी है, फिर आप एनिमल यूरिनेट कर देता है स्पॉन्टेनियसली। दूसरे भी तरीके हैं यूरिन कलेक्शन के, अगर उससे नहीं होता तो फिर दूसरे भी तरीके हैं। पर रेक्टम भी आप ब्लेडर को पल्पेट कर सकते हैं यूरिनेशन के लिए, और नहीं तो फिर आपको सिरिंज लगा के या नीडल पास करके भी एस्पायरेट कर सकते हैं यूरिन को। तो ये एक टेक्निक है यूरिन पास करवाने के लिए। फिर ये यूरिन डिपिस्टिक यूज़ हो रही हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ द टेस्ट measurements could be seen on the urine dipstics. They are readily available for animals. So this is the procedure how to make animal to urinate. Look at him. Next, elicit urine by rubbing the perineal region in a circle with your hand. Inguinal region or perineal region. Hold a urine stick under the urine stream before evaluating the strip for ketones, glucose, blood, protein, and pH. And pH. Okay. Ketones and blood levels may be slightly elevated soon after calving. Animals with highly elevated ketones will require treatment for ketosis. High protein with low blood levels may indicate renal disease and require a blood test to confirm. After collecting urine, move to the left side of the cow. Place your stethoscope under the elbow to listen for heart murmurs and to evaluate rhythm and heart rate. On the left side. Sinus arrhythmia is unusual in a cow. You may hear a third hard sound from an audible as irregular murmurs from correlate with pain in dairy cattle. Inspiration is typically louder than expiration. Expiration is usually passive. Loud expirations may indicate a respiratory problem. Respiratory rates will have some variation in the cow in cold or hot weather. In the European English, respiratory. Next, evaluate the rumen for firmness. It respiratory. Push the stethoscope into the animal's side and listen for at least 2 minutes to confirm the rate of contraction. Respiratory, not the respiratory. Rumen contractions will occur at a rate of about 1 to 4 contractions in a 2-minute period. A bit similar with British English, respiratory, but in English and American English is respiratory. So most of the times we pronounce it the respiratory system, but in a British it is respiratory, while in the English, American English, it is respiratory. So mostly the word pronunciation is a technique to for your good communicator, for transferring the message which you want to transfer from your side to another listening person. Once we were in China for our degree course for the PhD, तो वहाँ पे हमने अपने टीचर को कहा कि हम लाइब्रेरी जा रहे हैं, तो वो समझ नहीं पा रही थी कि ये लाइब्रेरी क्या है। हालांकि वो इंग्लिश जानती थी, लेक्चर भी इंग्लिश में देती थी, तो हमने फिर उसको ट्रांसलेट करके बताया कि हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे बुक्स और किताबें लड़के पढ़ते हैं। तो फिर उसने कहा कि ओ यू वांट टू गो लाइब्रेरी, तो हम उसे कहते लाइब्रेरी जा रहे हैं। हमारी पाकिस्तानी इंग्लिश कुछ इस तरह की है कि मोस्ट ऑफ दी फॉरेनर्स को इतनी जल्दी से समझ में नहीं आती है। लाइब्रेरी, तो प्रोनाउंसिएशन या फोनेटिक्स ये एक हुनर है, सीखना चाहिए। उससे आपकी फ्लुएंसी और आपके बोलने का अंदाज फॉरेनर्स इजीली उसको पिकअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी रेस्पिरेटरी, नॉट रेस्पिरेटरी। Sounds and feel for the strength of the contractions. Yeah, human contraction again similar. Next, ping the cow to evaluate the abdomen. For abdomen. Pings are high-pitched sounds caused by the interface between fluid and gas in the abdomen. Start with your stethoscope at the paralumbar fossa. Ping as hard as you can to elicit an audible sound. Then ping while listening with the stethoscope between the ribs and along the lower abdomen. Left displaced abomasum, free gas in the rumen, and on rare occasion free gas in the abdomen will cause audible pings in the left side of the cow.
Differentiate between LDA and rumen pings by location. LDA pings are usually audible in the area between ribs 9 and 13. 9 and 13. When there is free gas in the rumen, pings will extend dorsally and caudally through the paralumbar fossa. Okay. Surgery is not required for free gas in the rumen, but in the event of left displaced abomasum, the animal would usually require surgery to correct the problem. Palpate the prescapular lymph nodes to assess their size and evaluate the animal for signs of lymphoma associated with bovine lymphosarcoma. Perform the withers pinch test by grabbing the top of the withers and watching for the animal to dip down in response. A response usually means the animal is free from hardware disease. Hardware disease means a response may be helpful in ruling out hardware disease, but even normal animals may not respond to the test. Similarly, some examiners will push in the xiphoid region and listen for sounds from the trachea to evaluate abdominal pain. Test hydration status by pinching and letting go of the skin on the neck. कोई साउंड प्रोड्यूस करे इसको गुरंट टेस्ट कहते हैं, जो ज़ीफाइड कार्टिलेज है स्टर्नम का, उसके पीछे का जो एरिया है वहाँ पे मुक्के से जोर लगाते हैं नीचे से वेंट्रली बैठ के, या किसी और चीज़ से आप उसको जोर लगाएंगे ऊपर, तो अगर एनिमल को एब्डोमिनल पेन होगा, हार्डवेयर डिजीज़ होगी, तो एनिमल बोलेगा या क्या करेगा, कोई साउंड प्रोड्यूस करेगा, उससे पता लगेगा कि उसको पेन है। अगर नहीं करता तो वो नॉर्मल है। ये गुरंट टेस्ट कहलाता है। ये है जी dehydration may indicate dehydration. Skin pinch test. Take the cow's rectal temperature. Rectal temperature. Normal temperature will usually be between 100 and 102.5 degrees, but may also vary according to the outside temperature. On the right side, listen for murmurs again. Any murmur heard on the right is pathological and usually indicative of endocarditis. Listen to the lungs again to evaluate unusually loud inspirations or expirations. There are many causes of audible pings on the right side of the animal, including free gas in the rectum, gas in the colon, gas in the uterus, or bicecal dilatation. Pings may also be caused by right displaced abomasum or volvulus. Right displaced abomasum is usually audible in different locations between ribs 11 and 13. Differentiate between RDA and abomasum volvulus by pinging cranial to rib 10 over the liver. Cecal volvulus may be present if pings are audible more caudally than pings from abomasal volvulus. Pings caused by mesenteric volvulus are audible over the intestines. By pushing in and around the lower abdomen, the intestines can be shifted to help differentiate between inconsistent pings resulting from gas or by consistent pings caused by a lesion. Evaluating pings on the right side can be very challenging and may require exploratory surgery when a thorough examination is inconclusive in an animal exhibiting symptoms of discomfort and pain. Collect milk from each quarter individually in a strip cup. Examine the milk for abnormalities that indicate mastitis, such as discoloration, chunks, or the presence of blood. Subclinical mastitis may be evaluated using the California mastitis test, which detects somatic cell concentrations. Perform a rectal exam by putting on a sanitary sleeve. Apply adequate amounts of lube to the sleeve. Enter the rectum to palpate the cervix, uterus, ovaries, left kidney, rumen, iliac lymph nodes, and to check the abdominal space for any distension or abnormalities. Examine the thickness of the uterine fluid. Rectal palpation. Thin fluid with an unusually strong smell may indicate metritis. Only one video is left and only 3 minutes are left for you guys. So this is a urine collection sample from a cow. Then we will see a traumatic pericarditis animal. Oh, this will not. Next, I'd like to demonstrate the video.
So I need to open it with another player. Next, I'd like to demonstrate collecting a urine sample from a cow. पेरिनियम Urine can be रीजन पे collected by मसाज either करने से stroking the एनिमल escutcheon that I'm going to स्पॉन्टेनियसली यूरिनेट कर demonstrate, देता है. or by catheterization. या आप Catheterization is really too risky and also या too तो आप laborious कैथेटर for पास simple करें things like थ्रू checking for ketones वजाइन in a वल्वा dairy cow on a routine वजाइना basis. टू द The simplest way to यूरिन collect यानी urine from a ब्लड cow और is by कैथेटर के stroking थ्रू the यूरिन cow's पास करवाएं, लेकिन escutcheon. ये इतना आसान नहीं है. In order to accomplish this कभी कभी successfully, ब्लीडिंग होती you want to है, be sure that the बहुत cow is स्ट्रेसफुल है. not लेकिन ये एक सिंपल excited टेक्निक है यूरिन सैंपल or that you कलेक्ट haven't करने के had to लिए hassle कि the cow पेरिनियल in रीजन an जो है inordinate अडर amount से जो to वल्वर get her restrained. लिप्स तक है उसको The first हल्का thing you मसाज should करें, do then is gently stroke the cow जेंटली उसको मसाज करें right in this और area फिर between आखिर में the सर्कुलर मसाज दें, udder उससे एनिमल attachment, the यूरिनेट rear करता udder attachment, and the lower portion of the bone. You just है. this Need area. to do the same practice near the prepuce. Oftentimes, with just a little bit of persistence and the right technique, the cow will hump and urinate. She's passing a few drops of urine right now, which would probably be adequate to check for ketones on a dipstick. This is the traumatic pericarditis cow. Traumatic pericarditis पहले भी शायद हम डिस्कस कर चुके हैं, या हार्डवेयर डिजीज. And this is इसमें क्या very होता much है prominent. You एनिमल्स can की see here how much prominent it is. जुगुलर वेन जो है एनिमल की बहुत ही प्रोमिनेंट होती है. आप प्रेस भी ना करें उसको ग्रूव में, फिर भी बहुत प्रोमिनेंट होती है, स्वेलिन होती है. बल्जिंग जुगुलर वेन भी कहेंगे या इंगोर्ज्ड जुगुलर वेन भी कहेंगे. ये ट्रॉमेटिक पेरिकार्डाइटिस में हो जाती है. और ये देखें मैंडिबल की एरिया, यहाँ पे बहुत सारी स्वेलिन है और पानी जमा हुआ है. ये इसका ब्रिस्केट एडिमा, जो दोनों टांगों के बीच में जो ये है, उसको उर्दू में सिंधी में कोड़ी कहते हैं और ब्रिस्केट कहते हैं टर्मिनोलॉजी में. ये ब्रिसलेट है, ये ब्रिस्केट है. दोनों में एडिमेटस फ्लूइड जमा है और यहाँ पे स्वेलिन है. और ये एब्डामिन के नीचे जो वेंट्रल एब्डामिन है वहाँ पे भी एक्सटेंड कर रही है. ये सारे सिम्टम्स ट्रॉमेटिक पेरिकार्डाइटिस के हैं. And then see, this is the submandibular edema, very clear edema. And then here, see, this is the typical sign of brisket edema. Complete, fluids are accumulated here. This one is brisket edema. And then third most prominent sign is this, the ventral abdomen edema here. See, on the ventral region, there is a edema here as well. So these three symptoms are very common here. So it is almost, your time is up. I think you may have the other class also. Let me get your attendance. Then I may ask you for any questions. Let me stop screen sharing, then stop recording.